So let's start a new lecture number 2 on work energy and power. Last lecture में हम लोग देख रहे थे we have studied the basic concepts of we have taken an introduction of work energy and power, how the energy, work, force and the powers are related. So we'll just take a quick review. हम लोग ने kinematics देखा था. There we are studying the parameters of motion. That is what we have studied in the kinematics. ठीक है, फिर इसके पीछे की स्टोरी हमारी स्टार्ट हुई है. पैरामीटर्स आते कहाँ हैं? डायनेमिक्स से. डायनेमिक्स इज व्हाट इज माय पुश एंड पुल विच इज़ माय फोर्सेस. अब ये फोर्सेस कहाँ से आती है, इसके पीछे की स्टोरी क्या होती है? फ्रॉम द एनर्जी यू आर कंटेनिंग, फ्रॉम दैट ओनली you are applying this push and pull, and because of this push and pull, because of this force, some displacement happen on the object where you are applying the push and pull, and this process is called the work done. जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश एंड पुल करेंगे, दैट ऑब्जेक्ट मूव थ्रू सम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज व्हाट वी कॉल अ वर्क डन. एंड देन फ्रॉम हियर द energy got transferred और stored. और कितना ये फास्ट प्रोसेस हो रहा है फ्रॉम हेयर टू हेयर, एनर्जी का ट्रांसफर, दैट इज व्हाट वी कॉल अ पावर. कितना फास्ट प्रोसेस हो रहा है. सो इसके अंदर क्या था कि सपोज इफ यू पुश दिस ब्लॉक हेयर, so you are utilizing your energy that you are having. From where you are getting the energy? You are getting the energy from food that you are eating, so that's stored in your body in some chemical formation. जब वो chemical formation breakdown होती है, bonds breakdown होते हैं, you will get the energy. Through that energy, now you're going to supply that energy to this block. अब वो कैसे करेंगे? Through work done. You can supply the energy from yourself to this block done through work done. क्या करेंगे? You are going to push this block. जब आप block को push करेंगे, apply a force, and this block after some time, suppose it moved here, ठीक है, it's done a displacement of s. So ये जो process है कि इस block को मैंने push किया और ये यहाँ तक आ गया, that is, and now it is moving with some velocity v. It is with some velocity v से अगर ये move कर रहा है इस position पे, so I can say it is now having the energy of motion. ठीक है, it is having the energy of motion, which we are going to study in the later chapters, which we later lectures, which we call a kinetic energy. ठीक है, जब ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, applying the force, which we call a work done. Now you transfer the energy to it. Earlier इसमें energy क्या थी? Zero, because no motion energy was there, no kinetic energy was there, no motion energy. Now इसमें energy आ गई. So now जो आपकी energy थी, you have transferred some energy through work done. आपने work done किया. इसके अंदर वर्क डन कैसे हुआ? थ्रू द फोर्स विच यू हैव अप्लाइड. थ्रू द फोर्स विच यू अप्लाइड, यू हैव डन द वर्क डन. इट डिस्प्लेसेस थ्रू सम डिस्टेंस, और आपने अपनी एनर्जी इसमें थोड़ी सी ट्रांसफर कर दी. नाउ इट इज़ हैविंग द एनर्जी ऑफ मोशन विच वी कॉल अ काइनेटिक एनर्जी, विच कैन है इट इज़ मूविंग विद अ हाफ एम वी स्क्वायर से जैसे मूव कर रहा है. ठीक है, सो दैट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी. ठीक है, दैट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी. आपने अपनी एनर्जी कुछ इसमें ट्रांसफ़र कर दी थ्रू वर्क डन. और आप कितना फास्ट ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ पावर. अगर आपने 1 सेकंड में ट्रांसफ़र करी, 10 सेकंड में ट्रांसफ़र करी, 1 घंटे में ट्रांसफ़र करी, दैट शोज़ अ पावर. जितना आप फास्ट करेंगे तो उतना इट शोज़ यू हैव अ हाई पावर. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट we have studied, the relationship between energy, force, and our work done, and the power. So these are the relationship between them. That is in the last chapter we have studied. Then we have studied the work done. Work क्या होता है? Work is my force into displacement. Force dot product of displacement, that is force in the direction of displacement. जितना भी force in the direction of displacement लगा है, that is what we call a work done. So we can write it down as f s cos theta. इन दोनों के बीच का जो एंगल है, और f और s के बीच, that is also we can write it in a manner कि f कितना displacement, f का कितना portion of displacement, portion लगा है in the direction of displacement, और in the direction of force s का कितना displace हुआ है. In both the ways we can write f parallel into s, so that means f cos theta into s की डायरेक्शन में, और वी कैन राइट डाउन s cos थीटा इंटू f की डायरेक्शन में. ठीक है, बोथ द वे वी कैन रिप्रेजेंट. एंड वी हैव सीन कि दिस s इज माय पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है. ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट इज व्हाट दिस h शोज. ठीक है, this s is very important because in the rigid body point of displacement of force is equal to कि आपका center of mass कितना move किया. but in the deformed system, if you see in when we have seen the example of pressing of the balloon, उसमें s is 0, although the center of mass is 0, but s is there. ठीक है, because point of displacement वहाँ पे हुआ है. ठीक है, that is what we have seen. Then we have seen कि nature of the work done, negative, positive and 0, all those things we have done.
and we have seen this S is my observer dependent dependent observer dependent. This S is my observer dependent. It depends on the frame of reference, ठीक है, because for some frame maybe this displacement is different. For some frame, if the frame is moving along with the with the object where you supplied the energy, तो उस केस में displacement different आएगा, then the work done will be different. Okay, so that is there, we have studied in the last lecture. आज का जो लेक्चर है that is again quite a conceptual lecture, बहुत ही intuitive lecture है आज का भी. that is work done by different forces. बहुत ही misconceptions इस lecture से होते हैं. Work power energies वैसे बहुत easy chapter है if you apply the numericals, if you know the formula, but to conceptualize those things ना, कि potential energy को really समझना कि क्या potential energy है, conservative forces को really समझना क्या conservative forces होती हैं, how the relationship between conservative forces and the potential energy is there. So these are quite intricate topics, वो conceptually काफ़ी challenging होते हैं. तो for me, if you ask me, when I was preparing for my exam, so चैप्टर लगाने में बहुत ईजी था, क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाते थे, बट नाउ आई रियलाइज कि वो कंसेप्चुअली कितना इंट्रिकेट था, ठीक है. बट दिस लेक्चर इज़ अगेन इट इज़ गोइंग टू बी गुड लेक्चर, सो जस्ट गो थ्रू इट. सो इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस, ठीक है. वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस हम लोग देखेंगे. वर्क डन मोस्टली जो फोर्सेस हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे दैट विल कंटेन ऑलमोस्ट 98 to 99% ऑफ योर फोर्सेस है, ठीक है. क्या क्या फोर्सेस हम लोग देखेंगे यहाँ पे, वी आर गोइंग टू सी gravity, we are going to see pair of interacting forces, maybe the electrostatic forces, or even the gravity is also an interactive force. So both the things we can say here. Interactive forces we can say, constraint forces also we can take, like normal or normal and tension we are going to see. और हम देखेंगे कंस्ट्रेंट फोर्सेस का वाई देयर इज अ वर्क डन जीरो, जो हमने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वर्चुअल वर्क मेथड. वी आर गोइंग टू सी द रियल, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड के why the tension work done is zero in the last lecture when we are studying the virtual work method, ठीक है. वो फिर हम देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन हाउ द व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है. दैट इज़ क्वाइट अ कंसेप्चुअल टॉपिक. एंड देन द स्टैटिक फ्रिक्शन जहाँ पे भी आएगा दैट इज़ ऑलवेज अ क्वाइट एन इंट्रिकेट टॉपिक यार, बहुत मतलब इट इज़ इटसेल्फ स्टैटिक फ्रिक्शन, it is very much tricky, ठीक है. Here also if you see in the work done also, the most conceptually challenging is with the static friction only, ठीक है. फिर हमारा kinetic friction आएगा, because it is always challenging direction, it is always changing direction also and magnitude also, that's why it's always a challenging thing. Then we are going to study the kinetic friction की वजह से क्या work done होता है. Then we are going to study the spring force in the spring when it is compressed or elongated, or what is the work done on that, what is the work done by the spring force, and what is the work done by some external force. And then we are going to study in the last pseudo forces, ठीक है. pseudo forces की वजह से क्या work done होता है. These all things is the scope of today's lecture. Okay, so let's start. We'll start with the gravity. So work done by the different forces, हमने देखा. हम लोग क्या पढ़ेंगे, gravity, pair of interacting forces. These are the interacting forces we are going to study. Electrostatic we are going to study when we are going to study electrostatics. Spring force देखेंगे, friction देखेंगे, tension देखेंगे, इसमें भी static और kinetic देखेंगे, right. And then in the end we are going to study the pseudo force. Okay, अब हम देखते हैं पहले ग्रेविटी, ठीक है. ग्रेविटी को समझने के लिए विल डू 4 एक्सपेरिमेंट एंड विल अंडरस्टैंड द वर्क डन इन ऑल 4 एक्सपेरिमेंट, ठीक है. सपोज ए ब्लॉक ऑफ एम इज लिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी विद डिफरेंट पाथ. पहले आपने यहाँ से यहाँ तक ले गए, सिंपल वर्टिकल पाथ से ले गए. फिर आप यू हैव मेड इट थ्रू सम एंगल थीटा से आप लेके गए, ठीक है. तीसरा आप क्या लेके गए, स्टेप वाइज लेके गए, एंड ईच स्टेप इज हैविंग सम हाइट h1 h2 h3 h2 h अप टू hn. चौथा आप एक इरेगुलर पाथ से लेके गए, यहाँ से इस ब्लॉक को यहाँ तक लेके गए. नाउ इन ऑल 4 केसेस लेट अस सी व्हाट इज द वर्क डन, ठीक है. इसमें क्या वर्क डन होगा, दैट इज वी हैव सीन ऑलरेडी कि ये चारों जो हम मोशन मूव कर रहे हैं दैट इज वी आर डूइंग इट विद अ कांस्टेंट, वी आर डूइंग विद अ यूनिफॉर्म, देयर इज़ नो एक्सेलरेशन. दैट मीन्स जो आप एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं दैट इज़ इक्वल टू योर mg, दैट इज इक्वल टू योर mg. जो भी आप एक्सटर्नल फोर्स से लेके जा रहे हैं देयर इज़ नो एक्सेलरेशन, लाइक देयर इज़ नो एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन. इट इज़ बोथ द फोर्सेस आर इक्वल. योर एक्सटर्नल एफ एक्सटर्नल is nothing but is equal to your mg on the block, ठीक है. there is no acceleration of the block in any path, ठीक है. so that is important. external force is equal to your mg. so यहाँ पे if you see,
यहाँ से आपने कितना मूव किया, दैट इज एफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू योर एम जी. सो यहाँ पे ये कितना हाइट है, एम जी इंटू एच. सो दैट इज माई डिस्प्लेसमेंट कितना है एस, फोर्स कितना एम जी, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज माई एच. अगर ये मैं एच हाइट है मेरी, सो दिस इज माई वर्क डन. सेकेंड केस में देखते हैं व्हेन आई एम डूइंग इट विथ थीटा. ठीक है, सो नाउ माई एंगल इज एम जी इंटू एस एच, एम जी इंटू सपोज दिस इज माई एस, एम जी इंटू एस, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, एम जी इज इन दिस डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना है, इज माई कॉस थीटा. ठीक है, सो एस कॉस एम जी इंटू दिस इज माई एस एंड दिस इज माई थीटा, और फोर्स और इसके बीच में एंगल कितना है, सपोज दिस इज माई फोर्स, इफ आई टेक एक्सटर्नल फोर्स इज दिस इज माई एक्सटर्नल फोर्स in this direction, this is my external force, this is my s, angle is theta, so this will be 90 minus theta. So यहाँ पे आएगा mg into this s, और ये आएगा cos 90 minus theta, और यहाँ cos 90 minus theta is nothing but my sin theta. ठीक है, so s sin theta mg into h s sin theta आ जाएगा यहाँ पे s sin theta, और s sin theta क्या है मेरा, s sin theta is nothing but my this h. ठीक है, s sin theta is nothing but my this h. So here also you can say, you can make the force parallel. आपकी force अभी किस डायरेक्शन में लग रही है, in this direction. Make the force parallel to this. ठीक है, parallel to this force करने के लिए क्या किया मैंने, suppose mg ये है, तो इसके parallel mg कितना लग रहा होगा, mg sin theta along this plane, because यहाँ पे mg है, तो along this plane mg sin theta into your this distance is s. ठीक है, so we can write down mg sin theta into L, ये जो आपने डिस्टेंस कवर किया, दिस इज L, सो L sin theta is nothing but my this h height. ठीक है, सो here also you've got the same answer, mgh into mgh. थर्ड देखते हैं, इफ यू आर टेकिंग इट बाय स्टेप, सो यहाँ से mg आपने h1 चढ़ा, mg into h2, mg h3, h4, h5. so if I take mg common and you do the h1 plus h2 plus h3, it is nothing but your h. so in this case also स्टेप बाय स्टेप में आप लेके गए, तब भी इस केस में भी आपका जो वर्क डन आया, दैट इज इक्वल टू एम जी इंटू एच. अब लास्ट केस देखते हैं. लास्ट केस में भी हम अगर इरेगुलर पाथ से लेके गए, सो वी हैव सीन कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल इज ऑलवेज चेंजिंग. अगर डिस्प्लेसमेंट ये है, फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, फोर्स ये है, सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा वेरीज. सो विल टेक अ स्मॉल पोर्शन डी एस. ठीक है, डी एस स्मॉल पोर्शन लिया हमने. सो नाउ फोर्स इज दिस, डी एस मेरा डी एस पोर्शन लिया, तो एफ डॉट डी एस कॉस थीटा. ठीक है, अब नाउ आई चेंज द एंगल बिटवीन देम इज 90 minus theta, so cos theta will become sin theta. so ds, suppose this is my ds, this is my ds, this is my dh and this is my dx. ठीक है, so ds ये थीटा है, तो ds sin theta, ds sin theta कितना हो जाएगा, ds sin theta is nothing but my dh, और मैं dh को if I keep on accumulating this dh, it will give me this h only. so dh from 0 to h is my h only. okay, so this also result is my mg into h. you've got this now, why this because why this mg sin theta is coming in here. so I'll explain it again. so इस पे suppose इस point पे if I take this element, ये छोटा सा element लिया, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ये डी एस हो गया, यहाँ से इस ब्लॉक को यहाँ तक ले जाने में इफ आई से द फोर्स इज अप्लाइंग इज एफ इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, दैट फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू एम जी ओनली. वी आर सेइंग वी आर टेकिंग इट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, सो दैट फोर्स इज इक्वल टू एम जी. ठीक है, ओके, देयर इज नो एक्सेलरेशन, वी आर टेकिंग इट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, फोर्स विल बी इक्वल टू माई एम जी. तो नाउ द एंगल बिटवीन हेयर, जो एंगल है मेरा, दैट एंगल इज दिस वन. ठीक है, ये एंगल मेरा को दे रखा है, दैट इज एंगल इज माई थीटा. ठीक है, ये एंगल हो गया मेरा फोर्स, और जस्ट अ सेकेंड, ये दिस इज माई दिस एंगल इज गिवन थीटा. ठीक है, ये एंगल दे रखा है मेरे को, दिस डी एस और इसके बीच में. नाउ दिस एंगल विल बी नथिंग बट माई दिस एंगल इज नथिंग बट 90 minus थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में. सो नाउ द एंगल नाउ माई डिस्प्लेसमेंट, और हमारा जो ये होता है एम एफ डॉट डी एस जो होता है, दैट इज कॉस थीटा. इसके अंदर जो थीटा होता है, दैट इज द एंगल बिटवीन एफ और डी एस के बीच में, एफ और डी एस के बीच में जो एंगल होता है. ठीक है, यहाँ पे एफ और डी एस के बीच में एंगल कितना है, दिस, बिकॉज दिस इज माई एफ एंड दिस इज माई डी एस. ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 minus थीटा, 90 minus थीटा, बिकॉज दिस वी हैव टेकन इज थीटा विद द ग्राउंड ना. सो दिस वी हैव टेकन, सो दिस एंगल विल बी 90 minus थीटा. ठीक है, 90 minus थीटा ले लिया, तो कॉस 90 minus थीटा इज नथिंग बट माई
साइन थीटा। सो यहाँ पे भी आ जाएगा मेरा डी एच और डी एस साइन थीटा कितना होगा मेरा इज इक्वल टू डी एच, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था ये दिस इज माई डी एस, सो दिस इज माई थीटा डी एस कॉस थीटा इज दिस वन, डी एस साइन थीटा इज दिस वन, दिस इज माई डी एच, ठीक है। अब इसको मैंने इंटीग्रेट किया 0 से एच तक, h dh को, so it will give me simple h. So this the final result will come here. If I integrate it f dot ds, it is going to give me mg into h. That is my final result. I'm going to get it. Okay, right? So that is my in what is our observation in all four cases we have seen. So work done is same, it is coming same in all four cases, mg into h. So it does not depend on the path के ऊपर डिपेंड नहीं है, आप किसी भी पाथ से लेके जाएं, आपका केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो भी डिफरेंस है in the direction of force, that is what we call that is what we can say it is a work done. So here also if you see in all four cases it is path independent, किसी भी path से आप लेके जा रहे हैं, all four cases your work done is coming out to be same. Okay, so now work done is coming out to the same. We can say okay, this is we are going to study later in the chapter. So we are going to study later in the chapter okay, what is this okay, if you take the block from here to here, so ये तो आपने एक्सटर्नल वर्क डन किया है, एक्सटर्नल वर्क डन के अकॉर्डिंग दिस मोमेंट इज हैपनिंग. व्हाट अबाउट एफ जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपकी इस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट आपकी इस डायरेक्शन में हो रही है. सो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा दैट इज नेगेटिव वर्क डन इज नेगेटिव. So ये negative work done ना, whenever there's a negative work done, it will store the energy. It will store the energy. That is the work done is happening on to you, and you're not doing any motion, but the energy is being stored into you. ठीक है, आपका यहाँ पे भी motion zero है, velocity यहाँ पे भी motion zero है, but work done is done onto you by this gravity. So here you are having the your because of this gravity your the energy is being stored to you from this to this place. So that is what we call a potential energy. ठीक है, यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो गई. सो एनर्जी स्टोर का मतलब कि आपके अंदर अभी 0 थी, नाउ यू हैव 100 यूनिट्स. सो इन द लेटर स्टेज एनी टाइम यू कैन कन्वर्ट दैट 100 यूनिट. तो आपके 100 यूनिट यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मोशन. ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये सरफेस हटा दूंगा, इफ़ आई रिलीज द ब्लॉक इट विल कम डाउन विद सम वेलोसिटी. सो माई एनर्जी जो भी इसमें स्टोर हुई थी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ऑफ मोशन. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी कैन से कि जो वर्क डन है चारों का, दैट इज़ द वर्क डन दैट स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द ग्रेविटी. वेन एवर द वर्क डन इज गोइंग टू बी अगेंस्ट द फोर्सेस, अगेंस्ट दिस कंजर्वेटिव फोर्सेस भी हम लोग आगे देखेंगे. कंजर्वेटिव फोर्सेस बेसिकली होता है विच आर पाथ इंडिपेंडेंट फोर्सेस. जैसे यहाँ पे हमने देखा चारों केसेस में, अगर मैं एफ जी देखूँ बिकॉज ऑफ माई ग्रेविटेशनल फोर्स, चारों फोर्सेस में, ठीक है, चारों फोर्सेस में, बिकॉज हेयर एफ एक्सटर्नल जो हमने लिया था दैट इज इक्वल टू एफ जी. ठीक है, बट डायरेक्शन चेंज है, एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन ये है, एफ जी की डायरेक्शन ये है, बट मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है. ठीक है, सो आई कैन से कि ओनली नेगेटिव साइन विल बी देयर बट अदरवाइज मैग्नीट्यूड विल बी सेम. ठीक है, डायरेक्शन विल बी द वैल्यू विल बी नेगेटिव. वर्क डन की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी नेगेटिव ओनली. ठीक है, सो एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन दैट केस. यहाँ पे जो एफ जी, यहाँ पे जो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी जो है मेरा एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चारों में माई वर्क डन इज कमिंग आउट टू बी सेम वट एवर द पाथ यू हैव टेकन. सो दोज फोर्सेस where path is not forces are not depending, work done by those forces are not path depending. आप किसी भी पाथ से लेके जाएं आपको सेम वर्क डन मिलेगा. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ कंजर्वेटिव फोर्सेस. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, बट हेयर एक हल्का सा उसका कंटेक्स्ट आया था. सो आई हैव जस्ट गिवन यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन. Now again if we go back from another statement for the conservative force, एक तो पाथ इंडिपेंडेंट है, दूसरा कि अगर मैं इसको कंजर्वेटिव फोर्सेस इस ब्लॉक पे कंजर्वेटिव फोर्स क्या लग रही है, एम जी. ठीक है, एम जी इज़ माई ग्रेविटेशन. अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पे लेके जाऊँ हाइट पे और फिर इसको ए से बी लेके जाऊँ और मैं बी से इसको वापस ए ले आऊँ, पहले मैं यहाँ से यहाँ लेके गया फिर मैं यहाँ से यहाँ लेके गया,
तो नेट वर्क डन जो होगा दैट विल बी जीरो, ठीक है। जो वर्क डन मेरा स्टोर यहाँ पे हुआ होगा वो मेरा यहाँ पे रिलीज होकर जीरो हो गया होगा, ठीक है। देर इज़ नो लॉस ऑफ एनी वर्क डन। जितना वर्क डन मेरा ऊपर ले जाने में स्टोर हुआ होगा, जो पोटेंशियल जो एनर्जी मेरी स्टोर हुई होगी, उतनी ये यहाँ से यहाँ पे जा रही होगी, उतनी ही एनर्जी रिलीज हो रही होगी, उतना ही वर्क डन पॉजिटिव होगा। जितना यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन हुआ है उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन हुआ। दैट इज द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस बिकॉज इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। ओके, सो वी कैन से द नेट वर्क डन ए से बी तक ले जाने में कितना था, mg इंटू एच, और वापस आने में माइनस एम जी एच। ओके, right, so it is from A to B. If you see work done by external force is this one, and work done by gravitational force will be minus mg into h plus mgh, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, ऊपर मेरा एच गया है, ठीक है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स मेरा एफ जी नीचे लग रहा है। सो दैट मीन्स वर्क डन पहले वाले केस में कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी माइनस, बिकॉज 180 डिग्री का एंगल है दोनों में, माइनस एम जी इंटू एच फ्रॉम ए से बी जब जा रहा हूँ, ठीक है। और जब बी से ए आ रहा हूँ दैट मीन्स एफ जी भी इसी डायरेक्शन में मेरा और एच भी इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल इज 0 डिग्री बिटवीन बोथ। सो आई कैन से वर्क डन इन बी टू ए बाय ग्रेविटी इज माई एम जी इंटू एच, ठीक है। सो ग्रेविटी के ये वाला वर्क डन है, और दिस वर्क डन जो ऊपर वाला था हमारा एम जी एच माइनस एम जी एच, दैट इज बाई एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल। सो इन बोथ द, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वी आर टेकिंग इट विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, so that's why we are using the f external here also. So that comes out to be दोनों का जीरो. So that is also one of the statement of conservative forces कि जब आपका पाथ इंडिपेंडेंट हो और जब आप इसकी इनिशियल पोजीशन से हटा के उसको किसी और पोजीशन पे ले आओ एंड देन ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिन पोजीशन, देन वी कैन से it is the net work done will be zero. Net work done is equal to zero in the conservative, because of conservative forces. So conservative forces only initial or final position depends on initial and final position, does not depend on the path taken, ठीक है। that is my whenever the work done, net work done is zero, ठीक है। दैट इज द, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आप यहाँ से ब्लॉक को यहाँ तक लेके गए, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड योर फाइनल पोजीशन, एंड फाइनल से अगर आप वापस यहीं पे ले आए, सो नेट वर्क डन अगर जीरो आ रहा है, सो इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पार्ट टेकन, बिकॉज जितनी आपकी एनर्जी स्टोर यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हुई, उतनी आपकी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक ले जाने में रिलीज हो गई, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, देर इज नो लीकेज ऑफ एनर्जी इन द होल प्रोसेस, ठीक है। सो and it is not depending upon कि how fast you have taken and how slow you have taken, it is only depending on upon initial and final position, कि ये नहीं है आप कितना फास्ट लेके गए। वर्क डन आप हमने वर्क डन देखा था, it does not depend on आप how fast you are doing it, it is only depending upon the force and your displacement, ठीक है। आप वो displacement आप जितने मर्जी टाइम पीरियड में कर लो, but when you consider the power then only you have to consider the how fast and how slow you are doing, but here work done के केस में it is only the initial and final position that we are checking, and the net work done, if we return to the initial point, we can say it is zero. So these are the cases which we have discussed for the gravity, ठीक है। as the gravity is a conservative force, so we can say the same points apply for the conservative force, but these all points are for the gravity में क्या है, हम लोग अगर उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाएंगे, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी नेगेटिव, और अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जाएंगे तो इट विल बी नेगेटिव, फिर उसके बाद वापस लेके आ जाएंगे उसी पॉइंट पे, इट विल बी पॉजिटिव, और नेट वर्क डन विल बी जीरो, नेट वर्क डन विल बी जीरो, ठीक है। एंड इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी होगी, इट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट, ओके। सो अगर आप ऐसे 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 लेके गए, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो टोटल जो आपका ग्रेविटेशनल जो वर्क डन होगा इस यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, दैट इज एम जी इंटू दिस हाइट, दिस एच हाइट, ठीक है, एम जी इंटू एच ओनली, दिस हाइट ओनली इट विल कम, ओके। नाउ वी विल सी टू केसेस के फोर्स ऑफ ग्रेविटी देखते हैं इन टू केसेस, ठीक है। वन इज के आई एम टेकिंग इट फ्रॉम अ बॉल इन अ वर्टिकल डायरेक्शन इन दिस फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए से बी तक वर्टिकल डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर मैं वही सेम बॉल इफ आई एम ब्रिंगिंग इट डाउन इन द in this inclined manner, so what will be my force of what will be the my work done because of gravity, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन में आ रहा है, सो एम जी इज दिस, डिस्प्लेसमेंट इज दिस, माइनस 180 डिग्री होगा, बिकॉज इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, सो नेगेटिव होगा, एम जी इंटू एस, ग्रेविटी डज द नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे व्हेनेवर देयर इज अ नेगेटिव वर्क डन द एनर्जी गेट्स स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी,
वी गोइंग टू स्टडी लेटर. इस केस में देखते हैं जब ये बी से ए में आ रहा है, ठीक है, बी से ए में आ रहा है, सो माई मोशन इज इन दिस डायरेक्शन एस, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रही होगी एम जी, और इस डायरेक्शन में कितनी लग रही होगी एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा. नाउ आई विल पुट एम जी साइन थीटा इंटू, और ये कितना है एस, और एस साइन थीटा कितना हो जाएगा, इट इज़ अगेन माई एच ओनली, दिस इज अगेन माई दिस एस साइन थीटा, एस साइन थीटा इज अगेन माई, सो सेम एम जी इंटू, नहीं इस वाले केस में तो एम जी एस साइन थीटा आएगा, और इस वाले केस में दिस वी हैव टेकन इट एस, और यहाँ पे हमने एस ये लिया हुआ है, ठीक है. अगर मैं इसको एस ले लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें भी जो मेरा एस साइन थीटा आएगा ना यहाँ पे कंपोनेंट, ये तो मेरी फोर्स हो गई है एम जी साइन थीटा, ठीक है, एम जी साइन थीटा इंटू एस ले लूँ मैं, ठीक है. अगर मैंने यहाँ पे एस ले लिया तो एस साइन थीटा इज़ नथिंग बट माई दिस इज़ माई एच, सो एस साइन थीटा इज़ माई एच. सो अगेन अगर मैं इसको यहाँ पे भी ला रहा हूँ या ऐसे भी लेके जा रहा हूँ, तो इस केस में भी दिस इज़ द ओनली थिंग, वी हैव टू मैटर व्हेन वी आर कंसिडरिंग ओनली द वर्टिकल हाइट, ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी वी आर गोइंग टू कंसिडर कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट. आप ऐसे लेके जाएं, ऐसे 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 लेके जाएं, ऐसे 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 जिस मर्जी डायरेक्शन से लेके जाएं, बट जिस मर्जी पाथ से लेके जाएं, बट इट ओनली डिपेंड्स ऑन कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन में इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द वर्क डन बाय पेयर ऑफ इंट्रैक्टिंग फोर्सेस. ठीक है, अभी हमने पेयर ऑफ अभी ग्रेविटी देखा. ग्रेविटी इज ऑल्सो इंट्रैक्टिंग फोर्स, वी आर गोइंग टू सी व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द पोटेंशियल एनर्जी, तब और देखेंगे. बट अभी जो है एक जनरल इंट्रैक्टिंग फोर्सेस देखते हैं. ठीक है, सो वी आर कंसिडरिंग, सो हमारे पास एक सिस्टम है, यहाँ पे एक ब्लॉक ये है ए, एक बॉल ये है, एक बॉल ये है बी. ठीक है, एंड देयर इज अ इंट्रैक्टिंग फोर्सेस बिटवीन देम. इंट्रैक्टिंग फोर्सेस मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर वर्किंग ऑन बोथ द बॉडी. सो ये वाली इस वाली बॉडी पे बिकॉज ऑफ दिस बॉडी टू फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, इस वाली बॉडी टू पे बॉडी वन की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है. ठीक है, सो दीज आर द इंट्रैक्टिंग फोर्सेस. सेम वे अगर मैं नॉर्मल देखूँ, नॉर्मल इस वाले ब्लॉक की वजह से ग्राउंड को जो नॉर्मल मिल रहा होगा वो इस डायरेक्शन में मिल रहा होगा, और जो ग्राउंड की वजह से ब्लॉक को नॉर्मल मिल रहा होगा इस डायरेक्शन में मिल रहा होगा. सो दिस इज ऑल्सो एन इंट्रैक्टिंग फोर्स. सो टेंशन, नॉर्मल and electrostatic, so these are all the interacting forces. Okay, so we consider this example. So here we are having two interacting force. Suppose this object is at a distance x1 from the origin, we consider it as a origin, and this object is at a distance x2 from the origin. Suppose because of this interacting force is more than this interacting force, because of these two, this moved dx here and this moved dx2 here. ठीक है, because of the forces. So there may be other forces happening on it, but we'll find out the distance, we'll find out the work done by these two forces. There may be other forces which is making them moving in this direction dx1 dx2, other forces भी work कर रही होंगी, because सारी forces की वजह से ही मेरा आता है कि मेरा कितना डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है, बट हेयर वी आर फाइंड आउट द वर्क डन बाय दीज टू फोर्सेस. सो इन दोनों के थ्रू वर्क डन कितना होगा मेरा, दिस f इंटू डिस्प्लेसमेंट इसकी इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, सो इट विल बी f इंटू dx1. यहाँ पे क्या है मेरा f ये है, बट डायरेक्शन मेरा मूवमेंट ये हुआ, इसकी वजह से जो मेरा वर्क डन हुआ माइनस f इंटू dx2. ठीक है, अगर मैं नेट वर्क डन देखूँ तो माइनस एफ मैंने कॉमन ले लिया, दैट विल कम्स आउट टू बी x2 माइनस x1. ठीक है, सो दैट कम्स आउट टू बी x2 रिलेटिव टू x1. सो इफ वी डू अ रिलेटिव मोशन में मतलब इसको मैंने कांस्टेंट मान लिया, इसका मूवमेंट कुछ नहीं हुआ. ठीक है, और इसके ऊपर मैंने जो भी x1 इसका मूवमेंट हुआ इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया इस डायरेक्शन में x1. सो फाइनल इसका मूवमेंट कितना आएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस वन इज x2 माइनस x1. सो दैट इज व्हाट इट हैज कम अप हियर. सो वर्क डन विल बी fd इंटू fd x2 minus x1. ठीक है, that is a relative motion of 2 with respect to 1 whenever we are considering the interaction forces. ठीक है, दोनों के बीच में कितना relative motion हुआ, then only we see there is a work done. If this x2 minus x1, this relative displacement is 0, we can say work done is 0. Suppose for instance if this is there, ठीक है, ये इसके ऊपर इस वाले ब्लॉक के ऊपर इधर से n लग रहा है और ये ग्राउंड के ऊपर n लगा रहा है. सो दीज आर द इंटरेक्टिंग फोर्सेज बिटवीन देम एंड दिस ब्लॉक हैज़ बिन मूव टू दिस डायरेक्शन हियर. ठीक है, यहाँ से a से ये पोजीशन ए हो गई, ये b हो गई. यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्क डन बाय n विल बी इंटरेक्टिंग फोर्सेज विल बी 0, बिकॉज इन दोनों के बीच में जो ये जो पॉइंट है ये दोनों रिलेटिवली इट इज़ नॉट मूव्ड.
ठीक है, रिलेटिवली बोथ द पॉइंट्स आर नॉट मूव्ड। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज रिलेटिवली नॉट मूव, जिसपे नीचे वाले की वजह से ऊपर लग रही है, ऊपर वाले की वजह से नीचे लग रही है फोर्सेस, नॉर्मल फोर्स। तो ये वाला पॉइंट है रिलेटिवली इट इज़ नॉट मूव्ड। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, सो रिलेटिवली दिस पॉइंट इज नॉट मूव्ड, सो वी कैन से x2 relatively the position the relative motion of 2 with respect to 1 is 0, or relative motion of 2 with respect to 1 is 0, so we can say the normal की वजह से यहाँ पे जो मेरा normal की वजह से work done is 0, or other way to look at that okay, because my displacement is in this direction, normal is in this direction on this block, we can say work done is 0, but because of interacting forces there's a different way of viewing it। यहाँ पे interacting force को देख रहे हैं हम लोग बस, ठीक है। ये जो normal है इस पॉइंट पे ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल आ रहा होगा दैट इज इन दिस डायरेक्शन, और इस पॉइंट पे इधर आ रहा होगा नॉर्मल। ये वाला जो पॉइंट है देयर इज नो रिलेटिव मोशन। अगर ये वाला पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन का मतलब है ये वाला पॉइंट ऊपर हो गया ऐसे, ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स ही हट जाएगा यहाँ, तो नॉर्मल फोर्स ही जीरो हो जाएगा। सो अगर हम ये वाला पॉइंट इस केस में देखें टेंशन में, ठीक है, सो ये दो पॉइंट हैं, यहाँ पे टेंशन ऐसे लग रही है, यहाँ पे टेंशन ऐसे लग रही है, एंड दिस टेंशंस आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव चेंज नहीं हो रहा तो वी कैन से कि द नेट वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। अगर स्ट्रिंग मेरी इनएक्सटेंसिबल है तो दैट मीन्स ये दोनों के बीच में देर इज विल बी अ रिलेटिव मोशन, ठीक है। सपोज दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 2, नाउ बिकॉज द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल x2 माइनस x1 विल बी 0, ठीक है। सो देयरफॉर डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन इन दो के बीच में 0 हो जाएगा। बट इफ़ द स्ट्रिंग इज एक्सटेंसिबल, अगर ये स्ट्रिंग स्ट्रेच कर रही है, ठीक है, सो देन देयर विल बी अ सम वैल्यू ऑफ डेल्टा x2 माइनस डेल्टा x2 और 1 के बीच में कुछ ना कुछ इसमें लेंथ इसकी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। सो देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन ऑफ 1 with respect to 2, there will be a relative motion of 1 with respect to 2। when there is a relative motion then the work done will come, and we can say in that case there is a work done। okay, so in the constraint forces where we have seen कि अगर हमारा string inextensible है, so why the tension force is 0, it is because of this only, because there is no relative motion in the string के string के हर part का motion जो है that is same। अगर ये x मीटर मूव कर रहा है तो ये भी x मीटर मूव करेगा, so इन दोनों के बीच में relative motion is 0, ठीक है। अगर ये इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आ गया दैट मीन्स वी कैन नॉट कंसिडर द टेंशन फोर्स इन आवर लास्ट चैप्टर वर्चुअल वर्क मेथड 0, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमने देखा कि x21 इज द एलिमेंट्री रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अलॉन्ग द लाइन ऑफ सेपरेशन, ठीक है, अलॉन्ग द लाइन ऑफ सेपरेशन इन दोनों के बीच में, ठीक है। और सेम वे अगर ये देखूँ तो लाइन ऑफ सेपरेशन ये है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव डिस्टेंस नहीं आया अगर मैंने ब्लॉक को मूव किया। सो जो नॉर्मल फोर्सेस है मेरी दोनों की वजह से जो मेरा वर्क डन होगा नेट वर्क डन विल बी 0, ओके। सेम वे इफ आई से दिस टेंशन फोर्सेस ऑल्सो हेयर, और इफ आई कंसिडर इट हेयर टेंशन फोर्सेस ऑल्सो, इन दोनों के बीच में देर इज़ नो लाइन ऑफ सेपरेशन के बीच में, देर इज इन दोनों पॉइंट के लाइन ऑफ सेपरेशन के बीच में देर इज़ नो रिलेटिव मोशन। सो आई कैन से माई डेल्टा x2 minus x1 is 0 and my work done is 0, okay। So again if x2 minus x1 is 0 there is no relative moment, there no relative motion, then the work done is 0। so ये हमारा बहुत केसेस में यूज़ होगा constraint forces में, because if the string is inextensible, so string inextensible है, there is no relative motion between 2 points in the string, so we can say work done by the tension is 0 in that case। same way when the normal is coming in the hard and the rigid surface, अगर ये surface rigid and hard है तो इस पे जो ब्लॉक पे A1 पे 2 की वजह से जो फोर्स लगा हुआ इधर, और जो 2 पे 1 की वजह से जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा इधर, और ये सरफेस हार्ड है, ठीक है, दिस इज हार्ड एंड द ब्लॉक इज हार्ड, देयर इज नो लाइक डिफॉर्मिटी इनटू इट। सो वी कैन से ये जो पॉइंट है इसका देयर इज नो रिलेटिव मोशन, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। सो रिलेटिव मोशन नहीं हुआ तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट, इसके जो दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज 0, x2 minus x1, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0, तो नेट वर्क डन बाय बोथ ऑफ देम विल बी 0, ठीक है, नेट वर्क डन बाय बोथ ऑफ देम विल बी 0। सो वी कैन से relative displacement between the point of application of the constraint forces along the line of F is 0, ठीक है। So this is my line of force, ठीक है, along the line of force if there is no relative motion, तो we can say in the constraint forces normal हो गई, tension में also if we say this pulley block system, so ये वाला point and ये वाले point के बीच में जो भी tension था, because of them the work done will be 0, because there is no separation, no relative separation between these 2 points, ठीक है, because of inextensible and the constraint relation is there।
So N21 and this one constraint relation is there. The relative displacement of this point, ठीक है, कोई पॉइंट का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ये ऐसे ऊपर इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ गया, बट अगर ऐसे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ गया देन नॉर्मल विल बी जीरो, ठीक है, देयर ऑल्सो द वर्क डन विल बी जीरो. So relative work done between relative displacement between point A is zero, therefore work done is zero. Okay, if there is a relative displacement between both of them, then we can say the work done will not be zero. So in case of we say if the string is there, suppose the spring is there, ठीक है, ये ब्लॉक M1 और M2 ब्लॉक ले लिया आपने, ठीक है, अगर ये वाला मेरा x1 मूव किया और ये वाला भी मेरा x1 मूव किया, सो देर इज़ नो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, वी कैन से देर इज़ नो वर्क डन, देर इज़ नो वर्क डन. इफ़ ये वाला मेरा x2 मूव कर गया, दिस इज़ माई x2 एंड दिस इज़ माई x1, बट x2 इज़ ग्रेटर देन, नाउ इन सेकेंड केस इज़ x1. सेकेंड केस में मेरा अगर x2 इज़ ग्रेटर देन x1 है, देन आई कैन से देर इज़ द रिलेटिव मोशन ऑफ दिस ब्लॉक 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. ठीक है, पहले केस में क्या था, मेरा रिलेटिव मोशन ऑफ ब्लॉक 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या था, जीरो, बिकॉज x1 इज इक्वल टू x2, दोनों सेम उससे मूव कर रहे थे. ठीक है, सेकेंड केस में क्या किया, मेरा दिस x1, इसकी वजह से जो मेरा यहाँ पे मूवमेंट था ऑन दिस ब्लॉक विल बी x1, सेकेंड केस में x2 है, बट x2 इन द सेकेंड केस इज ग्रेटर देन x1. तो नाउ मोशन ऑफ ब्लॉक 2, motion of M2 with respect to 1 will be this x2 minus x1. Now x2 minus x1 will be some positive value, so that means in that case this work done will be there. In that case work done will not be zero. Okay, so that is what, whenever there is a relative motion between the particle, then we can say there is a in that case there is a work done. Okay, so that is what we are having, the interactive work done by interacting forces. Okay, now we'll go deep into the friction, spring force देखते हैं, और टेंशन हमने डिस्कस कर ही लिया. टेंशन के अंदर because there is no relative motion between two points, so we can say because of tension the work done will be zero. Okay, now we are going to discuss this electrostatics में पढ़ेंगे दिस वन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब हम पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे. ग्रेविटेशन फोर्स हमने ऑलरेडी देख लिया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द स्प्रिंग फोर्स एंड फ्रिक्शन. ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा है, उसको थोड़ा और कंसेप्ट को सब्सटेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन और देख लेते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे दे रखा है मास m और मास m, ए मैन वन ऑफ मास m स्टैंड्स ऑन द एलिवेटर मूविंग अप विद द एक्सेलेरेशन ऑफ a. ठीक है, ये मास m, ये मैन है ऑफ मास m, इट इज़ मूविंग अप विद एन एक्सेलेरेटर विद एन एक्सेलेरेशन a. A man 2 is standing in the elevator, so this is my man 2. The elevator starts with the initial velocity v0 at time t is equal to 0. Okay, t is equal to 0 से v0 से start है. Consider the time interval t from the beginning. After time t we have to tell the work done by the normal, contact force and the gravity on the man. First is observer, first with the observer 1, second is standing on the elevator. So first thing हमें बतानी है, जो men 2 खड़ा हुआ है, this men 2 in the elevator. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग now work done by normal and contact and the normal contact force and the gravity as this person is observing on this person, that is what we have to tell. And standing on the elevator, then we have to tell men 3 standing on the ground. ठीक है, अब मेरे को इस men के ऊपर जो नॉर्मल की एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, उसकी वजह से, नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है इस मैन के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन बताना है. नाउ वर्क डन क्या होता है मेरा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, नाउ दिस डिस्प्लेसमेंट इज माय ऑब्जर्वर डिपेंडेंट. So we have to see the how the motion is happening with respect to the observer, then only we can put across the value of s and we can find out our work done. So now let us see this observer. So now this observer, if this with respect to this observer, this person is standing still, or we can say at the rest, there is no motion of this observer. So we can say कि यहाँ पे जो इस पे mg लग रहा होगा और यहाँ पे जो इस पे नॉर्मल आ रहा होगा, so there is no relative motion of this point, जहाँ पे point of application of forces पे कोई relative motion नहीं आ रहा ना. अगर
mg अगर मैं सपोज करूँ दिस पर्सन इज देयर, सो नॉर्मल इस पे ऊपर लग रहा होगा एंड दिस fg नीचे लग रहा होगा. देयर इज विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, ठीक है, जितना ये s मूव करेगा उतना पर्सन मूव कर जाएगा. सो रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन विल बी जीरो. सो नाउ for the normal force and mg, for all the forces in fact, there is no relative motion between 1 and 2. So we can say if the observer 2 is observing this observer 1, as per observer 2, the normal force, because relative motion is zero, so work done by all the forces on 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 विल ऑलवेज बी जीरो. तो जो भी सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू 2 जितनी भी फोर्सेस हम देखेंगे ऑन ऑब्जर्वर 1 विल ऑलवेज बी जीरो. फोर्सेस कैन बी एन एम जी और द स्यूडो फोर्स इफ वी कंसीडर. स्यूडो फोर्स इस पे नीचे ऐसे लग रही होगी, और द स्यूडो फोर्स इफ वी कंसीडर सारी फोर्सेस के अकॉर्डिंग, बिकॉज देर इज नो रिलेटिव मोशन 1 और 2 के बीच में. बट 3 और 1 के बीच में देर विल बी अ रिलेटिव मोशन बिकॉज इट इज गोइंग विद एन एक्सेलरेशन ए और इनिशियल वेलोसिटी v है. सो s इज इक्वल टू v, इनिशियल थी v नॉट t प्लस 1/2 at स्क्वायर, ठीक है. इट इज मूविंग विद दिस. सो आफ्टर सर्टेन टाइम t दिस विल बी माई डिस्प्लेसमेंट. सो व्हाट इज माई डिस्प्लेसमेंट ऑफ s1 with respect to 3? So this is my displacement. So now this displacement is there, and now because of this displacement my work done will be coming on this person 1 with respect to 3, because the point of application of force is now moving, ठीक है. earlier case में point of application of force it is stand still with respect to this person, and when we have seen work done is equal to f dot s होता है, और s is observer dependent, observer के according कितना ये point of application of force move किया. अब 3 के according देखते हैं. with respect to 3, now s13 with respect to 3 is not equal to 0. now this normal is what my if I apply a pseudo force onto it, is my mg. Suppose it is not pseudo force, if suppose this whole system, this according to the ground this person is moving with an acceleration a, so we can write down n minus mg is equal to ma. यहाँ से मेरा नॉर्मल आ गया mg प्लस ma, ठीक है. नॉर्मल ही आ गया. now s13 कितना हो गया, v नॉट t प्लस 1/2 एक्सेलेरेशन जो भी आ गई विद रिस्पेक्ट टू 3. ये ग्राउंड पे अगर ये भी मूव कर रहा होता तो एक्सेलेरेशन a1 विद रिस्पेक्ट टू 3 आ जाती है, बट दिस इज ऑन द ग्राउंड, दिस इज एक्सेलेरेशन इज 0, सो वी कैन राइट डाउन द एक्सेलेरेशन इज सिंपल a, ठीक है. ये मेरी एक्सेलेरेशन आ गई. सो विद दिस माई s13 आ गया, बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ फोर्स नॉर्मल किस पे लग रहा है, इस पे. सो दिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू 3 इज मूविंग ना, हाउ इट इज मूविंग, s13. सो यहाँ पे s13 आ गई. नाउ माई फोर्सेस विल बी वर्क डन बाय नॉर्मल इज माई m इंटू g प्लस ए इंटू s13, जो इससे मेरा फ्रॉम हेयर वट एवर द डिस्टेंस वी आर गेटिंग. ओके. नाउ वर्क डन बाय द ग्रेविटी जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहाँ पे नीचे है, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज s13 इज इन दिस डायरेक्शन, सो एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री. सो 180 डिग्री विल गिव मी द माइनस साइन. सो इन दोनों के बीच में देर इज अ फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, देर इज अ नेगेटिव साइन है. सो माइनस एम जी, और फोर्स कितनी है ये नीचे माइनस एम, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इज एम जी. सो एम जी इंटू s13 नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है. सो दैट इज माई वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन दिस पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन 3. ओके. नाउ मेरे से पूछा है कि व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द मैन 1 एंड द एलिवेटर, ठीक है. नॉर्मल फोर्स का मैन 1 और एलिवेटर पे नेट वर्क डन कितना है, ठीक है. नॉर्मल फोर्स का मैन 1 पे सपोज दिस इज माई नॉर्मल फोर्स, ठीक है. और मैन 1 पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल फोर्स इस पे ऐसे आएगा नॉर्मल, ठीक है. सेम वे एलिवेटर पे नीचे आएगा, ठीक है. अब हम किसी भी ऑब्जर्वर के थ्रू देखें, हमारा दोनों केस में जो हमारी वैल्यू आएगी दैट विल बी 0. इफ आई सी इट विद दिस ऑब्जर्वर, ठीक है. इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये पॉइंट तो मूव ही नहीं कर रहा, ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा, तो इस नॉर्मल की वजह से इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, और एलिवेटर के अगेन. सो दिस पर्सन इज हैविंग द नॉर्मल हेयर, और यही पर्सन नीचे इस पे ग्राउंड पे भी एलिवेटर पे भी नॉर्मल नीचे लगा रहा होगा, ठीक है. अब इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं पर्सन इन द एलिवेटर. इसके अकॉर्डिंग ये वाले पॉइंट का तो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है इस दोनों पे, एलिवेटर और मैन दोनों सेम एक ही जगह पे हैं, और ये जो ऑब्जर्वर है वो भी इसी जगह पे है. देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन इन बिटवीन देम. सो ये रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा. सो नॉर्मल की वजह से फॉर द ऑब्जर्वर इन द एलिवेटर द वर्क डन विल बी 0, ठीक है. अब हम देखते हैं फॉर नॉर्मल की वजह से एलिवेटर नेट वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स वो दोनों केस में ऑन द मैन एंड द एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम इस वाले के अकॉर्डिंग देखें, सपोज आफ्टर टाइम टी इट मूव्स अ डिस्टेंस x, ठीक है. सो इसके केस में कितना हो जाएगा, इसका नॉर्मल इज नॉर्मल इन दिस डायरेक्शन इनटू x, ठीक है. दैट इज माय वर्क डन ऑन मैन, ठीक है.
वी हैव टू फाइंड आउट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन मेन, ठीक है, मेन की आ गई। अब सेकंड केस में देखता हूँ, वर्क डन ऑन एलिवेटर। एलिवेटर वो कितनी होगी मेरी, नॉर्मल मेरा माइनस इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और एलिवेटर भी ऊपर एक्स मूव किया बिकॉज मैन इज कनेक्टेड विद द एलिवेटर ओनली, ठीक है। सो एलिवेटर भी ऊपर एक्स मूव किया, सो इट विल बी डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री इस वाले में, सो माइनस एन टाइम्स एक्स, ठीक है। अब मेरे से नेट फोर्स पूछा है दोनों का, नॉर्मल की वजह से कितना आएगा, अभी मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, सो इट विल कम्स आउट टू बी जीरो, ठीक है, बिकॉज हेयर प्लस एन एक्स आ गया, हेयर माइनस एन एक्स आ गया, सो इट विल कम्स आउट टू बी जीरो। सो नेट वर्क डन बाय द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन मेन 1 and 2 इज between 1 and the elevator is 0, because this point is not at all moving, this point is not at all moving. So आप किसी भी रिस्पेक्ट में देख लें, इसके रिस्पेक्ट में भी देख लें कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है इट इज़ नॉट मूविंग, तो इसके रिस्पेक्ट में तो मूव ही नहीं कर रहा, और इसके रिस्पेक्ट में नॉर्मल इस डायरेक्शन में है तो पॉइंट भी इधर मूव कर रहा है, और सेकंड इसके रिस्पेक्ट में अगर एलिवेटर देखूँ तो एलिवेटर पे फोर्स इधर लग रही है और इस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट है, सो जिसकी वजह से इसका जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स बिकॉज ऑफ नॉर्मल विल कम्स आउट टू बी जीरो, ओके, राइट। सो रिलेटिव मोशन ऑफ मेन एंड एलिवेटर, द नेट विल बी कम्स आउट टू बी जीरो, ओके। इन दोनों के बीच में बिकॉज अगर मैं नॉर्मली कंसिडर करूँ, केवल नॉर्मल कंसिडर करके चलूँ, तो हमने देखा था ना इस केस में या इस वाले केस में कि अगर मैं इस वाली फोर्स को ही कंसिडर करके चल रहा हूँ, इफ़ आई एम नॉट टेकिंग, सो इन दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जहाँ पे मेरी नॉर्मल फोर्स लग रही है, अगर उन दोनों के बीच में, और या जो मेरी इंट्रैक्टिंग फोर्स को एग्जिस्टिंग इंट्रैक्टिंग फोर्सेस लग रही है मेरी, अगर उन दोनों पॉइंट के बीच में कोई मेरा रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, सो आई कैन से इन दोनों की वजह से जो मेरी नेट वर्क डन आएगा वो ज़ीरो आएगा। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में जहाँ पे मेरी जो कोपेयर्ड फोर्सेस लग रही हैं, अगर वहाँ पे उन दोनों पॉइंट पे रिलेटिव मोशन आएगा तभी वर्क डन आएगा। अब इस वाले पॉइंट में देखो, ये मेरा नॉर्मल ऊपर है, ये का नॉर्मल नीचे है, बट आफ्टर टाइम टी ऑल्सो दिस पॉइंट, इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिफरेंस नहीं आया ना दोनों पॉइंट के बीच में, सो दैट्स वाई द नॉर्मल वर्क डन विल बी जीरो, बिकॉज देर इज़ नो रिलेटिव मोशन कि जहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन का ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नीचे से ऊपर मेन पे ऐसे लग रहा होगा और मेन इस पे नीचे लगा रहा होगा, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज सेम ओनली, देर इज़ नो रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन मेन एंड द एलिवेटर, मेन और एलिवेटर के बीच में कोई सेपरेशन ही नहीं हुआ है, सो देर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन मेन बिटवीन बोथ ऑफ देम, सो दैट्स वाई द नॉर्मल फोर्स की वजह से जो भी टोटल वर्क डन आएगा दैट विल बी ज़ीरो। Just go through it again. So again I'm telling you, it is to conceptually visualize this work energy thing, and this thing is quite an interesting, easy लगता है नॉर्मल बस इक्वेशन लगा के एफ एस कॉस थीटा करना, बट relatively how the S is changing, it is really good to see। और नॉर्मल फोर्स, और whenever there's a co-paired forces, अगर उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट ऑल्सो, सो सेम वे इफ़ यू सी इन द स्टैटिक फ्रिक्शन में जब आएगा हमारा, तो उस केस में भी इफ़ यू सी स्टैटिक फ्रिक्शन में भी ये वाला पॉइंट तो मूव नहीं करता कभी, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स द पर्सन इज रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो ये वाला पॉइंट भी नहीं मूव करेगा, सो ओवरऑल जो नेट फोर्स आएगी बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी जीरो बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। नाउ विल सी द नेक्स्ट टॉपिक इज आर स्टैटिक फ्रिक्शन ओनली, static friction. So we are going to see the static friction now, okay. So work done by static friction. Static friction means there is no relative motion between the ground and the object, okay. Suppose you apply force here, इस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन पीछे आएगा, ग्राउंड पे ये आगे आएगा, और ये वाला पॉइंट है, इसी पॉइंट पे ही इधर ये पीछे फोर्स लग रही है, इसी पॉइंट पे आगे, बट देर इज़ नो मोशन ऑफ दिस पॉइंट, दो बिकॉज इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा ना, इस पे पीछे फोर्स लग रही है और ग्राउंड पे आगे फोर्स लग रही है, अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आएगा दैट इज़ अ काइनेटिक फ्रिक्शन, उस केस में हमारा वर्क डन आ जाएगा, बट इस केस में देर इज़ नो रिलेटिव मोशन ऑफ दिस पॉइंट मीन्स अगर मैं देखूँ ये पॉइंट सेम एम पे भी यही है और एम ग्राफ सरफेस पे भी यही है, कोई मोशन नहीं हो रहा इस पॉइंट का, सो वी कैन से इस पे जो फोर्सेस इधर लग रही होंगी, इस पे जो फोर्सेस इधर लग रही होंगी, बिकॉज ऑफ नेट रिलेटिव मोशन इज जीरो, वी कैन से कि नेट वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी जीरो, net work done by the static friction will be zero. So again it is कि आप इस पॉइंट का ही देख रहे हैं, ठीक है, एंड विद रिस्पेक्ट इस पॉइंट का ही देख रहे हैं, एंड इन इफ दिस पॉइंट का बिकॉज यू आर सीइंग इज एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वी आर सीइंग, बट लेटर ऑन वी आर गोइंग टू सी कि
static friction will be, the work will come, but if we see it from some observer, if we see it from the observer, but we will find it on one body only. ठीक है, अगर मैं इसी बॉडी पे, सपोज ये बॉडी यहाँ पे है, एंड आई एम सीइंग, एंड दिस इस होल सिस्टम इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे ये वाली चीज़, ये वाला होल सिस्टम इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन. ठीक है, नाउ suppose this force is not there, this whole system is moving with some acceleration, so नीचे वाले के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स पीछे आएगी, नाउ ऊपर वाले के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स आगे आएगी, जिसकी वजह से ऊपर वाला भी मूविंग विद सम एक्सेलेरेशन. ठीक है, नाउ अगर हमसे पूछा जाएगा स्टैटिक, बिकॉज इट इज स्टेशनरी नाउ, रेस्ट पे है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन का मेरे से अगर पूछा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, ऑन दिस ब्लॉक वन, ऑन दिस ब्लॉक वन, what is my work done. Now the work done will come. Okay, so just consume this knowledge. Why the work done will come? Because we have been asked on m only. अगर हमारे से फिर से पूरे सिस्टम का पूछा जाता, that will again be 0. अब हमसे पूछा गया केवल m पे बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन कितना आया, then the work done will come, because work done at this case will be, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी आ जाएगी मेरी, जितना ये मास है मेरा किससे मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन ए से, दैट विल बी माई स्टैटिक फ्रिक्शन. इट विल नॉट बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिकॉज इट इज़ एट रेस्ट. सो स्टैटिक फ्रिक्शन ये आ गई, इसकी वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट चला ये मास विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर. ठीक है, देन इन दैट केस स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से वर्क बनाएगा. विल सी दोस केसेस. तभी कह रहा हूँ ये वाला थोड़ा लेक्चर थोड़ा यू हैव टू कंज्यूम अ लॉट इनटू दिस. सो देखते हैं, हमने यहाँ पे देखा था. सो सिस्टम नेट फोर्स जो आएगी बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस दोनों साइड में, दैट विल कम्स आउट टू बी 0 फॉर स्टैटिक. अगर मैं केवल इस पे देखूँ, इस पे भी 0 आएगी बिकॉज देर इज़ नो मोशन. अगर मैं इस पूरे ब्लॉक को नीचे मूव कराऊंगा ना, देन सम स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से ब्लॉक एम पे वर्क डन आएगा, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सम ग्राउंड ऑब्जर्वर. ठीक है, बट हेयर इन दिस केस इफ़ यू सी दिस ब्लॉक, यू आर पुशिंग इट हेयर, सो इस पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे आएगा, सेम ग्राउंड पे स्टैटिक फ्रिक्शन आके आएगा. सो ये जो फ्रिक्शन होगा फॉर दिस पॉइंट देर इज़ नो रिलेटिव मोशन, दोनों के लिए, दोनों फोर्सेस की वजह से, देन वी कैन से दिस इज अ केस ऑफ net force will be, net work done will be 0. Okay, so net work done by the static friction will be 0 because the point of displacement is fixed with the surface. There is no relative motion between this point on the block and the point on the surface. ठीक है, दोनों fixed हैं. We'll see this example that we were saying कि एक ट्रक है which is moving with acceleration 1 meter per second and after some time it is at a displacement of 50 meter. ठीक है, और इसके ऊपर एक मेरा ब्लॉक रखा हुआ है. ठीक है, इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है एक, एंड नाउ दिस ब्लॉक इज ऑल्सो मूविंग अलॉन्ग, और वो मूव क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. देर इज़ नो स्लाइडिंग ऑफ दिस ब्लॉक, सो there is no sliding on this block, so block is having the static friction with respect to this, and because of this friction only it is moving with this acceleration a. Because of this friction, अगर ये इस पे friction नहीं होती, it would have slide down, because of friction only it is moving with this acceleration a. और इसका मास दे रखा 100 kg. now we will find out the work done by the friction force here on this block. Let us see. No, that is with respect to ground we are going to see. Okay, so now block के ऊपर क्या क्या forces लग रही है कि mg, एक n, mg और n लग रही है, and इस डायरेक्शन में the block is moving. अगर ground के रिस्पेक्ट में देखें, the block is moving with acceleration a because it is connected with this truck, so it is also moving with acceleration a. now because इस पे जो फोर्स आएगी, बिकॉज दिस इज मूविंग, मोशन इसका ये है, ब्लॉक ऊपर रखा हुआ है, तो नीचे वाले के ऊपर फोर्स इधर आएगी, फ्रिक्शन फोर्स, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स आगे आएगी. ठीक है, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स आगे आएगी. सो बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स दिस एक्सेलेरेशन इज कमिंग इन दिस ब्लॉक, बड़ा वाला ब्लॉक जो ऊपर रखा हुआ है इसके ऊपर है. ठीक है, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं होती, इट वुड हैव डन द बैकवर्ड स्लाइडिंग और ये नीचे गिर जाता. ठीक है, नाउ एन और एम जी की वजह से कोई वर्क डन होगा, बिकॉज माई मोशन इज इन दिस डायरेक्शन, देर इज़ नो रिलेटिव मोशन ऑफ दिस पॉइंट, तो एन का भी देर इज़ नो, और यू कैन सी इट इन दिस वे, द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन एंड मोशन इज इन दिस डायरेक्शन, एंगल 90 डिग्री है. सेम वे एम जी और मोशन के बीच में, एस के बीच में एंगल इज 90 डिग्री, सो देयर फोर्सेज आर 0. नाउ विल सी what is my work done by static force on this block. So m और mg और n की वजह से परपेंडिकुलर है, that will comes out to be 0. now इस पे static force कितनी होगी मेरी, fs is equal to my m into a. it will not be the limiting friction. ठीक है, limiting friction नहीं होगी, fs will always be less than or equal to limiting friction, but it is moving with a, we can say the my static friction will be m into a.
ठीक है. माई स्टैटिक फ्रिक्शन इज m इंटू ए. m कितना दे रखा है 100 और एक्सेलरेशन कितनी है a. सो दिस कम्स आउट टू माई स्टैटिक फ्रिक्शन 100. ठीक है. नाउ इट बिकॉज ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन ओनली, ये जो पॉइंट है इसका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन कितना मूव कर गया, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड. बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इट इज मूव्ड ऑन दिस ब्लॉक हेयर. ठीक है. अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू दिस देखूँ, अगर यहीं पे चढ़ के ब्लॉक के ऊपर देखूँ तो ये पॉइंट अभी भी नहीं मूव किया है. दिस पॉइंट इज़ नॉट मूव्ड. और ये वाला पॉइंट इतना मूव किया है, इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है. सेम अगर नीचे वाला पॉइंट देखूँ इधर मूव किया है, इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर किया है और नेट इस दोनों पे फिर से जीरो आ जाएगा. ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक अगर मैं देखूँ, अगर ये कार्ट के ऊपर ही चढ़ जाऊँ मैं, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्ट दिस पॉइंट इज़ नॉट मूव्ड रिलेटिव टू दिस. ठीक है. सो इन दैट केस द फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा मेरा जीरो आएगा. बट वी आर सीइंग इट फ्रॉम द ग्राउंड ऑब्जर्वर. ग्राउंड के ऑब्जर्वर की वजह से ये जो फ्रिक्शन फोर्स इस पे ब्लॉक पे लग रहा है एफ एस इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जो ब्लॉक यहाँ से यहाँ पे 50 मीटर मूव कर गया. दिस इज माई 50 मीटर का मूव जो हो गया. बिकॉज ऑफ दिस एफ एस इंटू 50 इट इज़ माई नाउ वर्क डन. दिस इज माई वर्क डन नाउ. ओके. दिस इज माई वर्क डन. ओके. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू कार्ट देखूँ, कार्ट के ऊपर चढ़ जाऊँ, देर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. कोई रिलेटिव मोशन नहीं हुआ. तो दोनों की वजह से देर इज विल बी ए जीरो वर्क डन. ठीक है. बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन. राइट. इवन अगर मैं ग्राउंड ऑब्जर्वर पे देखूँ, इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट द ओवरऑल स्टैटिक फ्रिक्शन अगर मैं निकालूँ फॉर द सिस्टम, अभी मैंने केवल ब्लॉक पे निकाला है. अगर ग्राउंड ऑब्जर्वर को बोलूँ मैं ओवरऑल स्टैटिक फ्रिक्शन बताओ, तो इस पे ओवरऑल स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से हमेशा जो मेरा वर्क डन होगा दैट विल बी जीरो, बिकॉज इस पॉइंट का मोशन नहीं हो रहा रिलेटिव. ठीक है. ये ऊपर वाला और नीचे वाले में अगर मैं देखूँ, ये वाला पॉइंट जस्ट दोनों का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता स्टैटिक फ्रिक्शन में, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है कि द ब्लॉक इज एट रेस्ट. अगर इस पॉइंट का कोई मोशन नहीं हो रहा रिलेटिव मोशन, सो दिस पॉइंट का रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, सो सिस्टम का पूरा अगर मैं देखूँ ऊपर और नीचे दोनों का, सो स्टैटिक फोर्सेस की वजह से हमेशा वर्क डन जीरो है. बट यहाँ पे हम पे पूछा था कि स्टैटिक फोर्स की वजह से ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर वर्क डन कितना है. सो अगर इसके ऊपर वर्क डन आएगा, इसके ऊपर एफ एस इंटू एस, सो सेम वर्क डन विल कम आउट टू बी हेयर, सो माइनस एफ एस इंटू एस. सो अगर मैं नेट देखूँ दैट विल कम्स आउट टू बी जीरो. अगर मैं पूरे सिस्टम का देखूँ, कार्ट और इसका पूरे सिस्टम का देखो, नेट जीरो आएगा, बिकॉज देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. ये ऊपर वाला, ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में अभी भी रिलेटिव मोशन कुछ नहीं है. ये दोनों सेम पॉइंट पे हैं, ये दोनों सेम पे हैं. इन दोनों के बीच में ऐसा नहीं है कि ये ट्रक ऐसे है, ये अभी भी इसी पॉइंट पे यहाँ पे रखा हुआ है. अगर ये खिसक के यहाँ पे आ जाता, ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो हट ही जाता. फिर अगर ये यहाँ पे स्लाइड हो जाता, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता, उस केस में हम कह सकते थे ये जो उनका रिलेटिव पॉइंट है जो पहले था आफ्टर 50 मीटर, ये रिलेटिव पॉइंट मूव करके यहाँ पे आ गया. उस केस में हम लोग कह सकते थे कि बट दैट इज़ नॉट अ केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज़ अ केस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. उस केस में वर्क डन होगा कुछ, बट इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से कभी वर्क डन नहीं होता, बिकॉज जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है आगे पीछे दोनों की तरफ से वो नेट जीरो कर देता है, और यू कैन से रिलेटिव मोशन जीरो होता है इस वाले पॉइंट का. विल सी अनदर एग्जांपल. ये वाला देखते हैं. इस एग्जांपल में क्या कह रहा है, एक सरफेस है, उसके ऊपर ये वाला सरफेस मेरा स्मूथ किया हुआ है, और यहाँ पे इस बड़े वाले ब्लॉक पे और छोटे वाले ब्लॉक पे ये बीच में रफ सरफेस है, और बड़े वाले ब्लॉक पे अप्लाइड है फोर्स एफ. ठीक है. नाउ विल सी द डिस्प्लेसमेंट of this point. We'll see the displacement नहीं होगा if it's been given there is relative displacement between A and B is zero, because we are considering the static friction. यहाँ पे कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो ये वाले यहाँ पे जो भी फोर्सेस, दोनों फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन आएगा यहाँ पे, इन दोनों की वजह से, और वी कैन से द वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन, नेट वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी जीरो, बट वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन दिस ब्लॉक विल बी देयर. वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन दिस ब्लॉक विल बी देयर, नेगेटिव इन दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव इन दिस डायरेक्शन, बट ओवरऑल जो आएगा इन दोनों का इक्वल होता है, सो दैट विल बी जीरो. लेट अस सी. सो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर देखते हैं फ्रॉम द ग्राउंड. सो सपोज ये यहाँ से एक्स मूव कर गया, सपोज दिस इज एस ए विद रिस्पेक्ट टू बी. अगर देखें, अगर इस ये वाले पॉइंट को विद रिस्पेक्ट टू बी देखें, सो इट हैज़ नॉट मूव्ड एट ऑल. ठीक है. दिस पॉइंट हैज़ नॉट मूव्ड एट ऑल. देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू पॉइंट. इफ आई सिट इट हेयर एंड सी दिस थिंग, सो देयर इज नो मोशन टू इट. वी कैन से द नेट वर्क डन इज जीरो विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन सिटिंग हेयर. ठीक है. नाउ विल सी द रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग. ये वाला पॉइंट ग्राउंड ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, सपोज ये यहाँ पे था, यहाँ से मूव करके ये एक्स आ गया. ठीक है. तो ये वाला दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन तो नहीं है, तो ये वाला पॉइंट भी एक्स मूव करेगा,
और ये नीचे वाला पॉइंट ये जो है ये भी एक्स मूव कर जाएगा, जो ए और बी वाला पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों एक्स एक्स मूव कर जाएंगे। रिलेटिव मोशन अभी भी नहीं है, सो दैट मीन्स इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से नेट वर्क डन जीरो आएगा। बट ग्राउंड के ऑब्जर्वर में दोनों का सेपरेट निकालते हैं, दोनों ब्लॉक्स का, और दोनों को ऐड कर देंगे, दैट विल कम्स आउट टू बी जीरो। सो ये कितना मूव किया, ये ऊपर वाला ब्लॉक एस ए ओ दैट इज एक्स, नीचे भी एस बी ओ एक्स। वर्क डन इसके अकॉर्डिंग कितना आएगा, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ऊपर, और एक्स ही मूव किया है, ठीक है, सेम फ्रिक्शन फोर्स इंटू एक्स, एफ एस इंटू एक्स। इसमें क्या आएगा, ये एक्स इस डायरेक्शन में मूव किया बट फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एफ एस इंटू एक्स, एफ एस इंटू एक्स दैट इज माइनस, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दूंगा, इट विल कम्स आउट टू बी जीरो। सो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी जीरो। सो इवन इफ यू वॉक ऑल्सो ना, जब आप वॉक करते हैं, वेन यू वॉक, so in that case also your walking is because of static friction only, your walking is because of static friction only, there is no relative motion between you and your feet on the ground, ठीक है। सो अगर आपका देखें तो नेट फोर्सेस, नेट जो वर्क डन आएगा आपके और ग्राउंड के बीच में, दैट विल कम्स आउट टू बी जीरो। अगर मेरे को वर्क डन निकालना है ऑन यू ओनली, ठीक है, सपोज फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर वॉकिंग हेयर, यू आप पे फ्रिक्शन ये आएगा और पीछे वाले पे फ्रिक्शन ये आएगा, ठीक है। नाउ आप दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ग्राउंड और आपके अकॉर्डिंग अगर आप वॉक करेंगे, सो नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन will be zero, net work done by static friction will be zero. But if someone will ask के ground observer के according, if you walk to a distance x, so what will the work done on you by the static friction, that will be fs into x, और fs कितना होगा, the acceleration which you are having, m into a into x, because fs is the static friction, there is no relative motion between you and ground when you are walking, because there is no slipping happening. So ma is the acceleration that you are getting it from the friction because of this static friction, ma into x, ठीक है। यहाँ पे मैं वो नहीं आएगा, it is not the limiting friction, it is ma into x, ठीक है, whenever you are walking, so that is a। और सेम अगर ग्राउंड पे देखूँ, ग्राउंड पे कितना होगा, ग्राउंड कितना मूव कर गया, x, ठीक है, एंड दिस इनटू इसका फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है, दैट इज माइनस एफ एक्स। so it will comes out to be net जो आएगा इनका हमेशा, that will comes out to be zero always, okay। so shall we move on, next we will move on, we'll see one or two more questions, then we'll move to the kinetic friction। यहाँ पे कह रहा है a block of mass m is kept over another block of capital mass m, ठीक है। a constant horizontal force f is applying on the lower block produces an acceleration this in the system, इस पे फोर्स लगाई, इन दोनों सिस्टम पे एक्सेलेरेशन मेरा आ रहा है, दैट इज माय एक्सेलेरेशन एफ डिवाइडेड बाय 2 m माइनस एम। टू ब्लॉक्स ऑलवेज मूव टुगेदर, दोनों ब्लॉक्स देयर इज स्टैटिक फ्रिक्शन हियर, सो दोनों ब्लॉक हमेशा मूव करेंगे। फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द बिगर ब्लॉक। अब इस केस में आपको सारा पता लग जाएगा कि बिगर ब्लॉक पे अलग स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से अलग वर्क डन आएगा, स्मॉल पे अलग आएगा, बट दोनों को कंसिडर करेंगे इस पॉइंट पे, दोनों का अगर मैं लेके चलूँ, इट विल बी बिकॉज देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन, इट विल बी there is no relative motion between them, so it will comes out to be zero, okay, that we are going to see। so find the work done by the friction on the bigger block, यहाँ पे इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा। find the coefficient of kinetic friction between the bigger block and the horizontal surface, ठीक है, यहाँ पे जो इस पे because it is moving with acceleration, so there is a kinetic friction, so limiting friction आ जाएगा वहाँ पे म्यू इंटू इन दोनों का मास m, नॉर्मल कितना आएगा m प्लस m इंटू g, so that is the total friction force will be coming up here, and that we'll see, somehow we are going to find it out। third is find the friction force acting on the smaller block पे कितनी friction force है, and work done by the friction force on the smaller block and the work done by static friction on the bigger block। बिगर ब्लॉक पे तो पहले ये वाली फ्रिक्शन निकालनी है, वर्क डन इस फ्रिक्शन की वजह से कितना आ रहा है, और फिर इन दोनों फ्रिक्शन निकालनी है कितनी आ रही है, इसकी वजह से यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना ये भी निकालना है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। पहले हमारे को दे रखा है ये एक्सेलरेशन इतनी दे रखी है, ठीक है। सो पहले इस दोनों सिस्टम को कंसिडर करके चलते हैं, दोनों सिस्टम दे आर मूविंग विद एक्सेलरेशन है। अब सिस्टम के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं, एक तो ये एक्सटर्नल फोर्स और एक ये मेरी फ्रिक्शन लग रही होगी इन द ग्राउंड, ठीक है। सो मैं आई कैन राइट इट डाउन एफ माइनस एफ एम, और दोनों सिस्टम किससे मूव कर रहे हैं, एम प्लस एम इंटू एक्सेलेरेशन। आई पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन हेयर एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ मेरा कितना
फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, बिकॉज माई एक्सेलेरेशन इज गिवन हेयर, आई पुट इट हेयर, वन से m1 कैंसिल, f/2 आ गया, इधर ये ले गया f/2, f माइनस f/2 विल कम्स आउट टू बी f/2, fm मेरा आ गया f/2. नाउ दिस fm आई विल इक्वेट टू म्यू इंटू m into g, capital M small m into g, because this is moving, so limiting friction आ रहा होगा, so we can find out the value of my kinetic friction आ रहा होगा, we can find out the value of our kinetic friction, ठीक है. So let us find out. So this is my fm kinetic, this is f/2, if I equate it here, so I can get my value of mu from here. Now I have to find out the work done by friction on the bigger block. Work done कितना हो जाएगा, this f into if it's moved a displacement d, so f/2 into d, that is my friction is पे इधर है, it moves here, so we can say it is minus fmd. So this is my work done on by friction, kinetic friction on the bigger block. यहाँ पे इस वाले friction की वजह से it is this friction, and second case में आ जाएगा f/2 my kinetic friction, f/2 is nothing but my mu m plus m into g, यहाँ से mu आ जाएगा मेरा, इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँगा, that will give me the value of mu. नाउ थर्ड केस में पूछा है मेरे से फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक, सो ये इधर मूव कर रहा है, इस पे फ्रिक्शन नीचे वाले ब्लॉक पे इधर आ रही होगी, ऊपर वाले ब्लॉक पे यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन इधर आ रही होगी, बिकॉज ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन दिस इज ऑल्सो मूविंग विद दिस एक्सेलरेशन, ठीक है. सो f इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू दिस f/2 इंटू m प्लस m. So this is my, because of this static friction, this smaller block is also moving the same acceleration, no? We have been given both of them are moving together, so this is my value of f, ठीक है, m into a. नाउ मेरे से पूछा गया है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द स्मॉलर, वर्क डन हो जाएगा फ्रिक्शन इंटू डी, इधर हो जाएगा, और बड़े वाले ब्लॉक पे द सेम विल बी नेगेटिव, ठीक है, द सेम विल बी नेगेटिव. इसको जो भी यहाँ से मेरा f इंटू डी आएगा फॉर वर्क डन ऑन स्मॉलर ब्लॉक ऑन दिस m बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, और बड़े वाले ब्लॉक पे आ जाएगा वर्क डन ऑन बिग ब्लॉक by static friction will be minus ft, ठीक है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट आएंगे, because there is no motion of this point, no relative motion of this point, we can say the net work done by frictional force is 0 at this point. Okay, that is what has been asked in this question, right? So now we'll move on to our next question. Yes, so work done by kinetic friction. Static friction में हमने देखा था कि there is no movement of this point, there is no relative motion. Kinetic friction में क्या होगा, this point, ये जो point होगा ये ऊपर वाले पे आगे हो जाएगा, ठीक है, ये आगे हो जाएगा, और नीचे वाला because stationary है ये पीछे रह जाएगा, ठीक है. So we can observe it like this कि ये जो point था static friction में, because there is no motion, और if you see these two bodies are there and there is no motion of if this body is pulling, so there is no motion of this point, so we can say जो फ्रिक्शन फोर्सेस हो रही होंगी नेट लग रही होगी, और देर इज़ नो रिलेटिव मोशन ऑफ दिस पॉइंट. सेकंड केस में क्या हो जाएगा, देर इज़ अ रिलेटिव मोशन, ये वाला पॉइंट घूम के सपोज इट विल द ब्लॉक विल कम अप हेयर, ठीक है, तो ब्लॉक पे वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, जो काट पे वाला पॉइंट ये बी पॉइंट यहाँ पे रहा, और ये यहाँ पे आ गया. नाउ देर इज़ अ रिलेटिव मोशन, पहले ए और बी दोनों एक ही जगह थे, अब ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, सो नाउ देर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिकॉज देर इज़ अ स्लाइडिंग हैपनिंग. सो नाउ देर इज़ अ रिलेटिव मोशन. नाउ तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो नेट वर्क डन होगा, नेट वर्क डन विल नॉट बी इक्वल टू 0, तो नेट वर्क डन आएगा यहाँ पे, ठीक है, विल फाइंड आउट दैट नेट वर्क डन. सो इन दिस केस देर इज़ अ मोशन हैपनिंग, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा होगा, ग्राउंड के ऊपर आगे लग रहा होगा, ठीक है, एंड दिस मोशन इज़ हैपनिंग, सो देर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है. पहले ये दोनों इस पॉइंट सेम रहेंगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद दिस पॉइंट विल बी ए और बी पॉइंट सेम रहेगा, बिकॉज देर इज़ नो मोशन ऑफ दिस सरफेस, ठीक है. सो नाउ विल फाइंड आउट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एम, ऑन फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन ऑन एम. फ्रिक्शन इधर है, मोशन इधर है, एंड इट मूव थ्रू ए डिस्टेंसेस, सो वी कैन से माइनस एफ के एस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, थीटा इज़ 180 डिग्री, सो नेगेटिव आएगा यहाँ पे, ठीक है. नाउ ऑन द सरफेस पे क्या है मेरा, सरफेस तो कोई मूव नहीं किया, एस इज इक्वल टू 0 फॉर द सरफेस, सो सरफेस पे मेरा वर्क डन 0 आ जाएगा, बिकॉज सरफेस इज नॉट मूव्ड. एस बी पॉइंट अभी भी यहीं पे ही है, ठीक है,
my only A point moved here. अगर B भी point move कर रहा होता, so we can say, we can consider the relative motion then. ठीक है, we can consider the relative motion of small m with respect to m in that case. We'll see that example here. Now we'll see that example, but इस केस में s is my 0 because this ये जो surface है इसका कोई motion नहीं हो रहा, because of that it value comes out to be 0. और अगर मैं net work done देखूँ, it comes out to be negative. अगर मैं इसको plus ये करूँ, so this comes out to be negative. So net work done by kinetic friction is negative, and net work done by static friction will always be 0. बिकॉज देर इज अ रिलेटिव मोशन ऑफ दिस पॉइंट, ये पॉइंट मूव कर जाता है और फ्रिक्शन इस पर पीछे लग रही है एंड पॉइंट मूव फॉरवर्ड कर रहा है, सो 180 डिग्री एंगल, दैट्स वाई देर इज अ नेट नेगेटिव, राइट. और अगर यही वाला पॉइंट आगे साथ में मूव कर जाए, सो अगेन इट विल कम्स आउट जीरो, इट विल बी केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. नाउ विल सी इफ माई बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर स्लाइडिंग, अगर ये ऊपर नीचे दोनों स्लाइड कर रहे हैं. सो फॉर इंस्टेंस दिस ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन टू इट एंड इट हैज स्लाइड एक्स डिस्टेंस, और नीचे वाला ब्लॉक भी बिकॉज इस पर फ्रिक्शन है, ये आगे मूव कर रहा है, फ्रिक्शन इस पर पीछे आ रही होगी, नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे आ रही होगी, जिसकी वजह से आगे वाला ब्लॉक भी मूव कर गया, इट मूव थ्रू अ डिस्टेंस x2. ठीक है, नाउ विल फाइंड आउट द वर्क डन. वर्क डन निकालते हैं. छोटा ब्लॉक इट्स मूव्ड x1, सो f इधर इस डायरेक्शन में, x इस डायरेक्शन में, सो वी कैन से नेगेटिव, सो हियर कम्स आउट टू बी -f इंटू x1. बड़े वाले ब्लॉक पे निकालते हैं. बड़े वाला ब्लॉक इसी डायरेक्शन में मूव किया and the friction is also in this direction, so this comes out to be positive plus x2. ठीक है, now we'll do f is common both x1 minus x2. f की वैल्यू कितना है, because it is moving, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा mu into mg x1 minus x2, और x1 minus x2 कितना है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कितना हुआ, x1 minus x2, दिस इज द रिलेटिव मोशन, x1 minus x2 is the relative motion, that is equal to x. ठीक है, so minus mu mgx, that comes out to be the relative, that comes out to be the friction work done by kinetic friction when two objects are there and one object is sliding onto another object and both the objects are moving. ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव, इसको कैसे भी देख सकते हैं कि मैंने b को रेस्ट पे मान लिया एंड आई सी द रिलेटिव मोशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M. तो रिलेटिव मोशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M कितना होगा, इसको रेस्ट पे माना, दैट मीन्स इसको -x2 इधर किया, -x2 से सेम इस पर भी -x2 इधर मैंने सुपर इम्पोज किया. सो इस पर नेट मोमेंट कितना आ जाएगा m का, x1 minus x2. सो दैट इज व्हाट वी हैव गॉट इट हियर, x1 minus x2, दैट इज नथिंग बट माई x माइनस म्यू के mgx. ठीक है, सो व्हेन द टू सरफेस स्लाइड, एक फ्रिक्शन होगी on m which is this one which is greater because x1 is greater, दूसरी कम होगी, so that's why it is always more negative, क्योंकि x1 जो ये ऊपर वाला ये ज़्यादा मूव किया नीचे वाले के ऊपर, so this x1 will be more, फ्रिक्शन फोर्स दोनों पे बराबर होगी. so इस पे जो मेरी फ्रिक्शन आ रही होगी दैट इज़ मोर नेगेटिव, इस पे जो होगी लेस नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी. सो ओवरऑल जो देखा जाएगा, बिकॉज इस पर कम फ्रिक्शन है, इस पर वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कम है, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन सपोज इस पर 10 है और इस पर -50 है, इस पर हमेशा ज़्यादा रहेगी. ठीक है, नेगेटिव साइड हमेशा ज़्यादा रहेगी बिकॉज इट मूव्स मोर डिस्टेंस. सो वी कैन से द ऑलवेज इन द केस ऑफ स्लाइडिंग देयर इज ऑलवेज अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन कम्स अप. In the case of kinetic friction, always a negative value of work done comes up. ठीक है, total work done will always be negative in case of kinetic friction. If no sliding, both work done equal, then we can say total work done is 0. अगर कोई स्लाइड नहीं कर रहा, तो ये वाला पॉइंट भी यहीं पे है, ये वाला पॉइंट भी यहीं पे है, कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही, वी कैन से नेट वर्क डन 0. और अगर दोनों साथ साथ ही मूव कर गए, अगर ये दोनों काट के ऊपर दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, अगेन देयर इज नो स्लाइडिंग बट बोथ मूव थ्रू अ डिस्टेंस x, वी कैन से बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन इट मूव्ड f इंटू x, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन इट मूव्स f इंटू -f इंटू x, सो वी कैन से नेट वर्क डन स्टिल कम्स आउट टू बी 0. दोनों केस में नेट वर्क डन कम्स आउट टू बी 0. ओके, सो काइनेटिक फ्रिक्शन में नेट वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन में नेट वर्क डन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0 एंड यू हैव टू सी के इट इज़ अ नेट वर्क डन टॉकिंग अबाउट. अगर आपसे ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में किसी मूविंग का बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन समथिंग इज मूविंग, और उस पर अगर वर्क डन निकालना होगा, देयर इज़ अ वे टू डू दैट वी हैव सीन इट इन द प्रीवियस स्लाइड. ठीक है, इस स्लाइड में हमने देखा था कि हाउ इन दोनों के बीच में नेट वर्क डन 0 है, बट इफ फॉर द ग्राउंड ऑब्जर्वर इफ यू वांटेड टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, सो वी हैव कैलकुलेटेड इट दिस वन. ठीक है,
Now we'll see our next topic. This is my spring force. Spring force देखते हैं. Spring force is the work done by the spring force. So spring is there. So two things can happen when you apply external force here. Spring will get compressed. When you apply an external force in this direction, the spring will be stretched. So spring force अगर compressed होगी तो इस direction में आएगी, और अगर stretched होगी तो इस direction में आ जाएगी Fs. तो Fs is always opposite of F external minus F external. Fs is always minus F external. ठीक है. So if the spring is compressed or stretched, so Fs is always having a tendency to restore to relaxed position. So this is my relaxed position. Now you elongated it with some external forces direction में लगी. Now it will be इसके ऊपर spring force आएगी, that will bring it to the relaxed position. Relaxed position ये है, so spring force इस direction में आएगी, that is opposite to external force. ठीक है. अगर मैं compress कर रहा हूँ इसको, ये मैंने external force लगाई, now it will again try to restore its relaxed position through spring force. That will be in this direction, that is opposite of friction. Now we'll write it down. So my work done by friction force. So work done by friction force is always my negative, because my force is in this direction, displacement is in this direction if I am stretching, और अगर मैं compress कर रहा हूँ, so friction force is in this direction and my displacement is in this direction. So my work done will be, we'll see the work done will comes out to be, we'll see how the work done is coming out, we'll see that. But frictional force is always, we have seen friction, the spring force, not the friction force, spring force is always variable force, that is minus kx, that we have seen in the in our Newton's laws of motion chapter. It is always depending upon the displacement, कितनी deformity हो रही है, this x, and जितनी ज़्यादा deformity होती जाएगी उतनी ज़्यादा मेरी friction force, मेरी spring force बढ़ती जाएगी. So this is my spring force minus kx, because it is always storing, always opposite to your external force. If you apply an external force in this direction, friction spring force will be in this direction. So that's why there's a minus sign. And displacement, if it's x, अगर displacement इस direction में हो रहा है, so my spring force will be in this direction, kx. ठीक है. So we'll know the friction, or know the force and know the displacement, we'll find out the work done. ठीक है. Work done हम लोग करेंगे small portion के लिए, because with the x it is varying, it is a variable force, we'll do it for the small dx. So small dx के लिए हमने small dw निकाला, छोटा सा work done, x size है, x initial से x final अगर मेरा extension हो रहा है, so we have calculated it, x square by 2 हो गया, and the my final result is minus 1 by 2 x final square minus x initial square. So that is my work done by spring force, minus 1 by 2 k x final square minus x initial square. अगर x initial मेरा 0 है तो net work done will be minus 1 by 2 k x square, अगर मेरा x initial 0 है. ठीक है. So that is my work done if x initial is 0. So now if my x final is greater than my x initial, ठीक है, if my x final is greater than my x initial, so that comes out to be my negative value. That is, if my spring is initially relaxed and you stretch the string, when you stretch the strings, then the net work done comes out to be minus 1 by 2 fx square. ठीक है. Now if x1 is equal to x2, no stretching, no compression happen, so we can say the spring force will be 0. If x initial is greater than x final, that means I'm already in stretch position right now, suppose. So I'm already in stretch position, this is my relaxed position, I'm already in stretch position, so spring force will be in this direction, fs, and displacement will also happen in this direction. So in this case my work done comes out to be positive in the case of when my initial is bigger than my relaxed position. ठीक है. When it is already in the deformed situation, deformity से अगर मैं normal relaxed position पे आऊँगा, so spring force always favor the displacement, so my work done will always be positive. So जब भी मैं डिफॉर्म से रिलैक्स रहूँगा, वर्क डन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. जब भी मैं रिलैक्स से डिफॉर्म पोजीशन में जाऊँगा, चाहे वो कंप्रेस्ड में चाहे एक्सटेंशन में, वर्क डन विल ऑलवेज बी नेगेटिव. ऑलवेज रिमेंबर दैट. सो दिस इज अ केस ऑफ व्हेन माय वर्क डन इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, दैट मीन्स पहले वो इट इज़ इन अ डिफॉर्म सिचुएशन. सो इनिशियली जो है मेरा इनिशियल इज डिफॉर्म्ड, इनिशियली इट इज़ द डिफॉर्म सिचुएशन, एंड फ्रॉम देयर spring force and the displacement direction is same, so that's why my final work done comes out to be positive. ठीक है.
So it depends on initial, again it is conservative force because it depends on initial and final positions, depends on initial and final position, no path required ki how fast, how slow, what path it is taking. So spring, if you stretch the spring directly in this way, it is also good. If you stretch the spring first this way then this way, and then overall you have to see okay how much is the initial and the final extension, net extension kitna hai initial and final. On that basis only you could find out the value of your work done by spring force. Spring force का कितना है this one, -1/2 k final square minus k initial square. Initial 0 है तो मैं I can write it down kx k into x square. That also most of the time we have seen it will be used. So इस केस में देखते हैं जैसे हमने देखा था x initial मेरा, अगर if my x initial is this, I have applied an external force here, final मेरा x comes out to be this. So I can put out यहाँ पे work done by spring force will be is, this is my spring force because I'm extending it here. यहाँ पे extension हो रहा है because of spring का extension हो रहा है. So spring पे friction external force is direction में, then spring force is in this direction because it's try to restore its position. Spring force ये आ गया and my displacement is in this section, so -12 kx square. So even if I put the value here, so it is 0. इनिशियल मैंने 0 डाल दी, फाइनल मैंने ये डाल दी, सो आई हैव गॉट द सेम वैल्यू. ठीक है. स्प्रिंग फोर्स परफॉर्म व्हेन डिफॉर्म्ड फ्रॉम द रिलैक्स पोजीशन, दैट मीन्स व्हेन द स्प्रिंग फोर्स इज perform negative work done. Spring force always perform negative work done when deformed from the relaxed position. That we have seen कि अगर relaxed position पे रखा हुआ उससे आपने deform किया, then the spring force will always be trying to restore its position. अगर आपने extend किया तो spring force इधर लगेगी, आपकी displacement इधर होगी x. अगर आपने compress किया, compress में x इधर आएगा but आपका spring force इधर आएगा. So this will always be negative. Negative work done होगा हमेशा जब भी आप you performed a deformed from relaxed to deformed position. So if you see an example here, so this is my fs curve, fx curve. Okay, this is my fx curve. So if you see in this direction my force is negative, force is in this direction but my displacement is in this direction, so work done is negative. Okay, now इस case में देखते हैं here also the work done will be negative. How? Because my displacement, my force is positive, but my this x is negative, so here also it is my so here x, this is my x initial, this is my x final, this is change x initial x final. So initial से final, so if you see the x is decreasing, x is negative, x इस direction में increase कर रहा है, it is increasing in this direction but my force is positive, is in this direction. So again this work done comes out to be negative. So whenever it is whenever there is always a डिफॉर्म्ड से रिलैक्स पोजीशन, रिलैक्स से डिफॉर्म पे जाएंगे, वर्क डन विल ऑलवेज बी नेगेटिव. जब भी हम डिफॉर्म से रिलैक्स में आएंगे, सपोज ऑलरेडी मेरा एक्सटेंडेड है, ये एक्सटेंडेड है. ठीक है, दिस इज ऑलरेडी एक्सटेंडेड. ओके, एक्स इनिशियल. So we can say this is a why this is work done is positive. That is if this is x initial is already deformed, so it is if it's already deformed, force is positive, ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, so we can say this is a positive work done. Okay, so what I have explained, what I have told it earlier, this x final minus x initial, that is not the case. It is right graph. So x initial मेरा already deformed position पे है. ठीक है, और deformed से मेरे इसी डायरेक्शन में मेरा मोशन होगा, मेरा पॉजिटिव मोशन होगा एंड माई एक्स विल ऑलवेज बी इन दिस डायरेक्शन. सो अगर मेरा डिफॉर्म्ड है ऑलरेडी स्प्रिंग, इफ आई से माई स्प्रिंग इज ऑलरेडी स्ट्रेच, दिस इज माई रिलैक्स पोजिशन, दिस इज माई स्प्रिंग्स रिलैक्स पोजिशन. ठीक है, सो अब इस पर स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा होगा एफ एस, और मेरा एक्स भी इधर होगा. ठीक है, ऑलरेडी एक्स, अगर मैं एक्स यहाँ से कैलकुलेट करूँ, दिस इज माई 10 एंड दिस इज माई 5. ठीक है, ऑलरेडी मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ, सो ऑलरेडी डिफॉर्म्ड स्टेज में जब है ये, सो वी कैन से ऑलरेडी डिफॉर्म से रिलैक्स सिचुएशन में लेके आ रहा है, तो एफ एस इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ माई डिस्प्लेसमेंट, सो माई फोर्स विल बी, माई वर्क डन विल बी पॉजिटिव. ओके, सो sorry, this case I think I've got confused. This is a negative work done, not the positive work done. Why this is negative? Because this is taking a deform, this is always work done is always negative whenever this is a elongation stage, this is
x initial, x final. This is an elongation stage. This is my compression stage. This is my compression stage. Elongation stage में क्या हो रहा है? Work done, my force is negative. फोर्स इज नेगेटिव, दिस माई फोर्स पॉजिटिव, दिस फोर्स नेगेटिव. ठीक है, ये नेगेटिव फोर्स है, एलोंगेशन है ये एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, बिकॉज एक्स फाइनल इज माई मोर, एक्स इनिशियल इज लेस, सो दिस इज माई एलोंगेशन स्टेज. एलोंगेशन स्टेज में क्या है मेरा? एफ नेगेटिव है और एक्स मेरा पॉजिटिव है. ठीक है, सो जो मैंने इस ग्राफ के बारे में फर्स्ट में बोला था वही सही है, सेकेंड वाला गलत है. आई गॉट कन्फ्यूज, सो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस ग्राफ अगेन. दिस इज माई force into x graph. So इस ग्राफ में work done will always be negative. Let us see how. So x initial ये है, final ये है. That means the spring got elongated. बड़ी x की वैल्यू बढ़ गई ना. force क्या है मेरी? force is negative. force is my negative. ये negative, ये वाली साइड में negative force है, ये वाली साइड में positive है. negative force है, that means spring force इधर लग रहा है and my displacement is happening here. So work done will be negative. ठीक है, second case में देखते हैं मेरा x initial, मेरा x initial ये है और एक्स फाइनल मेरा फोर्स यहाँ पे पॉजिटिव है. फोर्स इज पॉजिटिव, वी टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव फोर्स. ठीक है, दिस इज बाय पॉजिटिव फोर्स. इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स, नो, इफ आई कंप्रेस द स्ट्रिंग, दिस इज माय नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन. ठीक है, इफ आई कंप्रेस द स्ट्रिंग हेयर विद सम एक्सटर्नल, सो दिस इज माय स्प्रिंग फोर्स इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन. इनिशियल इज माय दिस लेसर एंड फाइनल मेरा रिलैक्स होकर यहाँ पे आ जाएगा, दैट विल बी मोर. ओके, यस, सो दिस इज माई इनिशियल पोजीशन. यहाँ पे देखते हैं दोबारा, दिस इज माई रिलैक्स स्प्रिंग. नाउ कंप्रेस में कितनी हो गई? आई हैव कंप्रेस द स्प्रिंग, सो दिस इज माई कंप्रेस स्प्रिंग. सो इस पर स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा होगा, एफ एस. ठीक है, एफ एस. इनिशियल क्या है मेरा? इनिशियल इज दिस वन एंड फाइनल इज दिस वन. ठीक है, initial is this one, final is this one. Okay, so now in this case initial is this one minus initial is this one and final is, just a second, just 1 second. No, I'll just getting confused here in this. Just give me 1 second. I'll just go through it. If this is my okay, so whenever my spring is compressed, so this is my normal spring. ठीक है, अब I have compressed my spring here, so this is my axis move in this direction. So this is my x initial, x final. So yes, x initial is this, x final is this. X is moved in this direction, x is moved in this direction. This is negative x because you have, this is a positive side of x, this is a negative side of x. Now you're moving towards the negative side. Okay, so x is negative but my force is positive, so here also the work done comes out to be negative. Okay, so work done whenever you are taking it from deformed to relaxed, from relaxed to deformed position, so जब आप elongate कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में फोर्स नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव. जब आप कंप्रेस कर रहे हैं तो आपकी फोर्स पॉजिटिव है बट आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है. ठीक है, आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, सो वर्क डन इन बोथ द केसेस कम्स आउट टू बी नेगेटिव व्हेन यू वर्क डन रिलैक्स टू डिफॉर्म सिचुएशन. व्हेन यू गो फ्रॉम डिफॉर्म टू रिलैक्स, सपोज योर स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, ठीक है, इस पोजीशन में आपका एफ एस आएगा और इसी पोजीशन में आपका रिलैक्स पोजीशन में जब ये रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होगी और इधर ही इसका आपका एक्स आएगा. सो इन दैट केस दोनों की डायरेक्शन सेम है. इन दैट केस the work done by the spring force will be positive when it's going from deformed to relaxed. Okay, so just go through that again. I've got confused into it, so we have seen it again. Okay, now we'll see our last topic only. एक बार एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं. इसके बाद लास्ट टॉपिक रह गया हमारा वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स. ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं. ये हमारा स्प्रिंग फोर्स है, एक ब्लॉक रखा हुआ है. ठीक है, नाउ इट इज एट अ इक्विलिब्रियम पोजीशन. अब आई एम अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स एंड आई एम ब्रिंगिंग इट टू इट्स along it is a natural position. This is my natural position. ठीक है, this is my relaxed position. Because of this weight the spring got compressed. इस डायरेक्शन में इस पे आ रहा होगा, वो कितना होगा इसका mg sin theta is nothing but equal to my जितना इस पे compression यहाँ से यहाँ तक आ गया होगा xi. ठीक है, that is my initial compression. ठीक है, now I have to find out the work done by
spring force when I'm going to take it from here to here. So work done by spring force कितना होता था मेरा, -1/2 k final minus k initial. Final कितना है मेरा, this is my relaxed position, that is my 0. और initial कितना था मेरा, initial is my this one, initial is my k xi है, मैंने यहाँ से निकाल दिया. I just put the value of xi here and I've got my fs, my this positive. Why the positive has come, because it is going from deformed to relaxed position. इस position पे deformed था, it is going from deformed to relaxed position, that's why it came out to be positive. And we have solved it analytically with the formula. There also it came out to be positive. And conceptually if you understand this thing, for spring force भी इस direction में लगेगा and displacement भी इसी direction में हो रहा है, then that is why it is a positive, it will comes out to be positive. ठीक है. Now we'll see the pseudo force, work done by the pseudo force. Yes, there will be a work done by the pseudo force. Pseudo force comes up when you observe the phenomena from the non-initial frame of reference. Non-initial frame of reference is nothing but rotating or the accelerating frame of reference. ठीक है. So suppose this block is lying there and this whole system is accelerating in this direction. ठीक है. अगर मैं यहाँ से इसको observe करूँगा, there is a pseudo force coming onto it. इसकी there is a pseudo force coming onto it in this direction, m into a. ठीक है. But what about the motion of this block? If the block is lying rest here, no motion, I can say pseudo force is there, m into a, but there is no relative motion of this block with this cabin. Block का cabin के साथ तो कोई relative motion नहीं है. Then in that case, if there is no relative motion between, if m is not move relative to you, ठीक है, if it's just initially भी same था और finally भी same position पे है, then I can say work done comes out to be 0 because of pseudo force. But if this block after this sometime move here because of acceleration, now there is a relative motion. In that case we can say now the work done will be pseudo force into this s of m with respect to u. ठीक है, पहले s of m with respect to u कितना मूव किया है. ठीक है, that is what the pseudo force. Pseudo force changes from observer to observer. अगर कोई और ऑब्जर्वर किसी और उससे देख रहा होगा इसको डिफरेंट एक्सेलरेशन, तो द pseudo force will be different on this block. ठीक है. So we'll see one example that will clarify a lot of things because it is having two observer, two reference frame. We'll see that. So यहाँ पे एक पहला block है that is moving in this direction with acceleration 1 with respect to 2. ठीक है, this is acceleration of 1. Second जो है it is moving, this cart is moving with the acceleration a2. और एक थर्ड पर्सन, इस पे मेरा ऑब्जर्वर 2 बैठा हुआ है, ये ब्लॉक 1 है, इस पे ऑब्जर्वर 2 बैठा हुआ है कार्ट पे. ठीक है, विच इज़ मूविंग एट एक्सेलेरेशन a2. फिर एक थर्ड पर्सन है विच इज़ ऑल्सो मूविंग ऑन सम अदर कार्ट विच इज़ मूविंग विद एक्सेलेरेशन a3. ठीक है, दैट इज़ माई ऑब्जर्वर नंबर 3. ऑब्जर्वर नंबर 3, दिस इज ऑब्जर्वर नंबर 2 विच इज़ मूविंग, विच इज़ सिटिंग ऑन अ कार्ट a2 विच इज़ मूविंग विद द एक्सेलेरेशन a2. एंड दिस इज माई ब्लॉक. ठीक है, मेरे को बताना है वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स. इस पे वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स विद रिस्पेक्ट टू 2 एंड विद रिस्पेक्ट टू 3. इनिशियल मेरे को इनिशियल वेलोसिटी इज बिन गिवन 0. ठीक है, सो वर्क डन ऑन, वी हैव टू फाइंड आउट वर्क डन ऑन 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 एंड वर्क डन ऑन 1 विद रिस्पेक्ट टू 3. ये दोनों चीज़ें बतानी है, राइट. सो लेट अस वर्क ऑन. सो इसके रिस्पेक्ट में वी हैव टू सी द मोशन ऑफ दिस. सो now the block 1 is moving on this 2 with respect to 2 is, this is not the block 1 with respect to ground, this is block 1 with respect to 2. So it is, its acceleration is a12 with respect to this observer, because with this observer it is a12 itself. ठीक है, so now इस पे pseudo force कितनी लग रही होगी इस block पे, the pseudo force will be in this direction ma2. ठीक है, and it is moving in this direction with this acceleration, so I can write it down the displacement as s is equal to half, s is equal to ut plus 1/2 at square. U is my initial 0. A I can put it this a12, this I can put a12. So my displacement will be 1/2 a12 t square after time t. So this is my displacement and my pseudo force will be on this because I'm observing it from this reference frame. So pseudo force will be ma2. ठीक है, इस पे ma2. So my pseudo force की वजह से वर्क डन ऑन दिस वन विद रिस्पेक्ट टू दिस टू विल बी minus ma2 is this pseudo force because the angle between them is 180 degree. It is moving in this direction, s is this direction and pseudo force is in this direction. ठीक है, so minus ma2 into s12. और s12 हमने कैसे निकाला,
this direction में how we have calculated S12 with A12. Okay, with this A12. Now we have to find out with respect to this. ठीक है, with respect to this इसका मोशन निकालते हैं. Now first we have to find out कि ये ब्लॉक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना मूव कर रहा है, फिर इसके रिस्पेक्ट में कितना मूव कर रहा है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो मूविंग विद ग्राउंड विद द एक्सेलेरेशन a3. सो पहले इसका ब्लॉक का निकालते हैं. ब्लॉक 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है. दिस एक्सेलेरेशन ऑफ a1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज गिवन दिस. वी add the frame acceleration a2 into it, that will give me acceleration of 1. So acceleration of 1 will be acceleration of 1 with respect to 2 plus acceleration of 2. ठीक है, these are all in same direction, so we can write down acceleration of 1 with respect to ground comes out to be acceleration of 1 with respect to 2 plus acceleration of 2. ठीक है. Now another thing is we have to see it with respect to 3. So acceleration of 1 with respect to 3 comes out to be acceleration of 1 minus acceleration of 3. So that will give you acceleration of 1 2 plus acceleration of 2 minus acceleration of 3. So that is my acceleration of 1 with respect to 3. ठीक है. So this is my acceleration with which this is moving with respect to this. So हम दोनों के बीच में जो relative distance displacement बढ़ेगा वो with this acceleration बढ़ेगा. ठीक है. Now s comes out to be ut plus 1/2 at square. अब जो a की वैल्यू रखूँगा मैं ये वाली वैल्यू रखूँगा. This a13. This is my a13. Okay, how the displacement is, relative displacement is increasing between this observer 3 and this block, this observer 3 and this block. So that comes out to be this acceleration a13 के बीच में comes out to be this acceleration a12 a2 minus a3. ठीक है. So यहाँ से मेरी this comes out to my displacement a13 t square. Now what is my work done? इसके ऊपर pseudo force कितना आ रहा होगा, because it is moving with relative to this observer we are checking, so it is having a pseudo force here ma3. ठीक है, ma3. और यहाँ पे दिस इज माई ma3, बट डायरेक्शन इज दिस, डिस्प्लेसमेंट इज दिस, फोर्स की डायरेक्शन ये है pseudo force की. सो दैट्स वाई माइनस साइन 180 डिग्री है. माई ma3 इंटू s13, जो s13 आएगा मेरा यहाँ से आएगा. और s13 क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे इन दोनों के बीच में इंक्रीज हो रहा है. वी जस्ट अरेंज इट विद द, वी जस्ट डू इट द रिलेटिव मोशन, वी जस्ट अप्लाई द रिलेटिव मोशन. ठीक है. सो दैट इज व्हाट द pseudo force. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल जस्ट टेक अ क्विक रिव्यू हमने क्या क्या देखा. सो अगर मैं आई जस्ट कवर अप दिस पार्ट बिकॉज इट्स ऑलरेडी मोर देन 1.5 hour. I'll just cover up this thing again if you still confused in this, because even I got confused, so I have to repeat it multiple times. So if you still have the confusion, I'll cover up in the next lecture. I'll cover up this thing in the next lecture again. But anyways, I'll just we'll take a quick review. हमने आज क्या क्या देखा. We have seen work done by different forces. हमने gravity के according देखा how the work done by the gravity depends on the initial and final position only. It's not depend on the path taken. Any path से लेके जाओ, it will give you the same work done. Then we have seen the pair of interacting forces में देखा हमने कि अगर दो forces हैं, अगर they are interacting and because of them वर्क डन डिपेंड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन, कि 1 और 2 के बीच में अगर 1 और 2 है, इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, इस पर फोर्स इधर लग रहा है. सो इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखना है. अगर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 है, सो वी कैन से वर्क डन इज 0. अगर इन दोनों के बीच में, दोनों पॉइंट्स के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, देन वी कैन से सम वर्क डन विल कम. ठीक है. इन दिस वी हैव सीन कंस्ट्रेंट रिलेशन. कंस्ट्रेंट रिलेशन में जो भी होता है हमारा, द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट is always 0, so that's why work done by constraint forces is always 0. ठीक है. That is why we have applied the virtual work method in when we have seen the pulley block system. So the tension by that work done by the tension in string is always 0, because there the relative motion is always 0 in the string. ठीक है, because the string is inextensible. Same way normal force की वजह से भी constraint जो आता है, there also my relative motion of the पॉइंट ऑफ, जो दोनों ऑब्जेक्ट्स के अलॉन्ग द लाइन जो फोर्सेस हैं, उसके जो पॉइंट हैं, देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन इनटू इट. सो वी कैन से इन दैट कंस्ट्रेंट ऑल्सो, नॉर्मल कंस्ट्रेंट ऑल्सो, द वर्क डन विल बी 0. सो वी सीन द पेयर ऑफ इंटरेक्टिंग फोर्सेस. In that we have seen the static. Further we have discussed the static friction. Static friction means कि जब body के बीच में there is no relative motion, the block is or the body is stationary with respect to ground or with respect to any other moving body. They are both stationary, so no relative motion. So in that case the static friction will come. We have seen the work done by on the system, ऊपर और नीचे दोनों अगर consider करूँ, so work done on the system will always be 0 because of static friction.
and because of kinetic friction there's always a work done will come. So that work done we have seen. Then we have seen the spring force may we have seen the work done. It is whenever we take the spring from relaxed to deformed position, the work done is negative. When we take it from deformed to relaxed situation, the work done is positive. Then we have seen the work done with the pseudo force with the multiple moving surfaces. So that's all for today. In the next lecture we will start studying the motion, kinetic energy padenge. We'll study the energy in motion. Okay, then we'll study the conservative and non-conservative forces. We'll see the potential energy. Those are the major things that those requires a lot of counterintuitive thoughts into it. Okay, so I'll meet you up in the next lecture. All right, thank you.